Ali, when do we start? Just let me know. वालेकुम सलाम अलीशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. I guess we can wait like 4 to 5 minutes, then we can Okay, start. perfect. Okay, Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Okay, thank you so much. Good afternoon, everyone. I hope you're all doing great. Welcome to today's exciting session on personal branding through LinkedIn, brought to you by Confinity QAU chapter. We're absolutely thrilled to have you all here, and we promise this session will be packed with valuable insights that will help you take your professional presence to the next level. Before we dive in, let me introduce myself. I'm Mahnoor Shakil, the content lead at Confinity QAU, and I'll be your host for this session. For those who may not be familiar, Confinity is a thriving tech community dedicated to bridging the gap between students and the professional world through skill building, mentorship, and impactful opportunities. We've recently launched our Confinity chapter at Qaid-e-Azam University to bring these incredible learning experiences to you. Through expert led sessions, networking opportunities, and hands on workshops, we aim to equip students with the knowledge and connections they need to thrive in today's job market. Now, let's get to the real highlight of today, our guest speaker, Alicia Naqvi. Alicia is a brand and partnership strategist, an ex Gold Microsoft Learn student ambassador, and has previously led Google developer groups on campus at Air University Islamabad from 2022 to 2023. She is deeply passionate about empowering individuals with the right tools and strategies to build a strong professional brand and has an impressive track record in driving digital engagement. Today, she'll be sharing how LinkedIn can be a game changer, not just for professionals, but also for students who are looking to harness career opportunities. Whether you're in the tech industry or just starting to explore different career paths, this session will help you understand how to stand out, connect with the right people, and create opportunities that can shape your future. With that, I'll now hand it over to Alicia Naqvi to take us through this exciting journey. Alicia, the floor is yours. Thank you, Manu, for this wonderful introduction. Um, I will start off with myself. I will be sharing slides, but इससे पहले let me just give you a little bit how a context how we are going to start. And मैं भी यही चाह रही थी कि हम इसको ना as a class और इस तरह ना रखें, because there are a lot of videos out there on YouTube. बहुत से लोग हैं on LinkedIn, they talk about personal branding and everything. Uh, but why I am here is to empower you, is to give you the direction. ठीक है, मैंने अभी जो अपनी आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी, they are like 3-4 years old, जो मैंने अपना फर्स्ट सेशन दिया था ऑन लिंक्डइन इन माय यूनिवर्सिटी. ये तब की स्लाइड्स हैं एंड इट स्टिल इम्प्लाइज. और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक चेकलिस्ट के थ्रू लिंक्डइन की एक एक स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में बताऊंगी. और उसके बाद हम वॉलंटियर्स लेंगे, आप लोगों में से कोई, और उनकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे. ठीक है, सो without wasting any time, let me just share my screen, tell you all about myself a bit, and why I think LinkedIn has changed my life, and it can change yours as well. So let me start with that. Just give me a minute. So I'm using another screen. So please let me know कि मेरी आपको screen show हो रही है. I started sharing my screen. अली, आप ही बता दो मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी, it's visible. ठीक है. मानूर ने मुझे काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस करवा दिया. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, सो मानूर ने मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया, बट लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. करंटली आई एम अ बिजनेस स्टूडेंट एट दोश यूनिवर्सिटी इन इस्तांबुल. और उससे पहले आई वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन एयर यूनिवर्सिटी. उसका भी हम थोड़ा बताएंगे कि वाई switched from engineering to business side. Or while I was in Pakistan, I worked with 2-3 startups on partnerships and branding. And luckily, when I came here, my
first course is about brand management. So I will be sharing my insights जो अभी तक मैंने सीखा brands के बारे में, but अभी हम बात करें पर्सनल ब्रांड की और वो क्यों ज़रूरी है। और आई आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन पीसीबी। मैंने रिमोट बेस के साथ साथ काम किया एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर, फ्यूचर फेस्ट के साथ काम किया, टेन पल्स के साथ काम किया एज अ टेन पल्स चैम्प। और इन चीज़ों ने मेरा जर्नी शेप किया था। लाइक स्टार्टिंग में अक्सर मैं क्वेश्चंस देख रही थी कुछ लोगों ने फॉर्म में फिल किए कि हम किस तरह स्टार्ट करें एज अ स्टूडेंट, हम कैसे अपना जर्नी डिस्प्ले करें एंड एवरीथिंग। लिटरली व्हेन आई स्टार्टेड आउट बैक इन 2020 और 2019, मैंने सिर्फ अपने बारे में डालना शुरू कर दिया था कि या आई एम अ स्टूडेंट एट एयर यूनिवर्सिटी, कोई लैब प्रोजेक्ट है उसके बारे में ऐड कर दिया, उसकी पिक्चर्स ऐड कर दी। और क्रिकेट मैच अगर मैं खेलने जाती थी या क्रिकेट मैच में हम जीत जाते थे तो वो ऐड कर देती थी। इट्स क्वाइट इररेलेवेंट टू लिंक्डइन, बट आई स्टार्टेड एडिट दैट। और उससे आस्ता आस्ता ट्रांजेक्शन, लिटरली इसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज लिखी हुई हैं अदर देन पीसीबी, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मेरा जो स्टूडेंट एम्बेसडर का प्रोग्राम था, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर, गूगल, ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज आई गॉट फ्रॉम लिंक्डइन। और लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आई लेट यू नो वन बाय वन। तो मेन मकसद क्या है इस प्रेजेंटेशन का? आप सब लिंक्डइन के बारे में जानना चाहते हैं, बट इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल दैट, स्नैपचैट, टिकटॉक। तो वाई लिंक्डइन? अब मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी तो उस टाइम से इट्स बीन लाइक 4 years, आई ग्रेजुएटेड इन 2023, 5 years, या। सो यस, तो उस टाइम अपने दोस्तों को कहा करती थी लिंक्डइन ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन कर लेते थे, फिर कहते थे कि तुम्हें ही लिंक्डइन से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। लिटरली आप लोग, अक्सर लोग लिंक्डइन के अलावा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते होगे। और ऐसे ही होता है, अगर आप एक रील देखना शुरू कर दो और आपकी ओब्वियसली, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री या दी सोशल डिलेमा अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आप साथ साथ मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ नोट करें, वो ज़रूर देखिएगा। कि आपका माइंड ही ऐसा वो ट्रेन करते हैं कि आप घंटों लगा देते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जो सी साइट्स हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग पे, और कोई फायदा नहीं होता आपको। आपको लिटरली कोई फायदा नहीं होता। मीम्स में हाँ ठीक है, अच्छा होता है, आप कुछ देर फन हो जाता है, बट उसके अलावा भी क्या फायदा? तो सेम टाइम जो मेरे दोस्त इन्वेस्ट कर रहे होते थे दूसरे सोशल मीडिया पे, आई यूज टू स्पेंड दैट ऑन लिंक्डइन। आई एम ऑनलाइन लाइक 24/7। आई नो इट्स बैड, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप भी 24/7 लिंक्डइन पे ऑनलाइन रहो। बट मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, वहाँ से मैं कनेक्शंस बना रही थी, वहाँ से मैं अपने बारे में जो जो शेयर कर रही थी उसमें मुझे इंटरेक्शंस मिल रहे थे। तो उस चीज ने, और मैंने इसको ना एज अ अपॉर्चुनिटी यूज किया। मैंने नहीं, ये नहीं कहा कि लेट से आ रहा है जस्ट एक दफा करके छोड़ दिया। और लिंक्डइन ऐसे ही होता है, आप अगर नॉट जस्ट लिंक्डइन, इवन आप इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे भी इन्फ्लुएंसर या कुछ भी बनना चाहते हो, और अगर आप कंटिन्यूसली उसको यूज कर रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं आज आपको कहूँ कि लिंक्डइन पे आप ऐसे करें, आप इस तरह का मैसेज करें, तो आप जस्ट गिव मी, मेरी मदर की कॉल आ रही है, जस्ट गिव मी। ओके, सॉरी गाइस। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अगर लिंक्डइन को 24/7 यूज करो और जस्ट एक दफा यूज करके कहो कि मुझे अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी। आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। इट टुक मी लाइक 3-4 years टू बिल्ड माई प्रोफाइल। और जब जर्नी आपका चल रहा होता है ना, 3-4 सालों को, आप कहते हो कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं अगर आप एक चीज के साथ कॉन्सिस्टेंट रहो। एनीवेज, आप लोग अपनी जो भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन एंड आंसर या चैट में कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। आपकी क्यूरीज ऑलरेडी मेरे पास हैं जिनको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, लेकिन इन द मीन टाइम अगर कोई भी आपका सवाल होता है तो आप चैट में भेज सकते हो। चैट मुझे विजिबल है और मैं देख लूंगी कि अगर क्विक आंसर करना है तो मैं उसको आंसर कर दूंगी। लेकिन एक सवाल जिससे हम स्टार्ट करेंगे: हाउ डू पीपल नो हाउ गुड यू आर इफ दे डोंट नो इवन नो हु यू आर? अब मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत इनक्रेडिबल लोग होगे, आप लोगों के पास कोई स्किल होगा जो आपने बेचना है, एनीथिंग, सेल ना करना हो, लोगों को दिखाना हो, टू गेट अपॉर्चुनिटीज। तो कैसे पता चलेगा लोगों को? विदाउट यू टेल देम, विदाउट यू शो देम। तो इसके लिए एक बुक है,
शो योर वर्क। ठीक है, इसमें लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं कि आप अपना काम कैसे दिखाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अब कुछ आपका सीक्रेट वर्क है, ओबियसली सीक्रेट वर्क होता नहीं है, आपको जॉब चाहिए, आपको अपने आप को, यू हैव टू गेट योर सेल्फ आउट देयर। और इतने ज्यादा लोग रिजेक्शन से डरते हैं कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना कि पहले ही कहीं अप्लाई किए बगैर किसी अपॉर्चुनिटी में, लाइक उसके लिए जाने जाए बगैर आप रिजेक्ट कर दो कि ये नहीं हो पाएगा। सब कुछ पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन टिल द एंड ऑफ दिस सेशन रहेगा, और आप लोग स्टिक रहना टिल द एंड, बिकॉज एवरीथिंग आई हैव डिजाइंड इज फॉर यू टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन। तो ये मेन सवाल है, why personal brand is important, and this is I'm going to give you the answer with my next slides कि why it is important। ये पुरानी slides हैं, and just want कि uh, if you want to build your professional profile, देखिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे अगर यू आर डूइंग सम इन्फ्लुएंसर स्टफ, ठीक है, वो आपकी एक प्रोफेशनल स्टाइल वो प्रोफाइल बन जाती है, आप डिजिटल क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, जो भी आप करते हो। लेकिन जब आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है जिसमें आपके 300-400 फॉलोअर्स होते हैं, दे कैन नॉट गेट यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लेकिन लिंक्डइन इसीलिए यूज है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है फॉर अ प्रोफेशनल प्रोफाइल, फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन। तो फॉर दैट रीजन यू नीड लिंक्डइन। एंड ये कुछ लिंक्डइन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 500 मिलियन लोग फ्रॉम 200 कंट्रीज इसमें मौजूद हैं। ठीक है, और आप समझ लो कि पूरा एक नेटवर्क आपके पास मौजूद है। इंस्टाग्राम पे आप लोगों को रीच आउट करते हो, आपको अक्सर रिस्पॉन्सेज नहीं आते, और इंस्टाग्राम पे आप इतने ज़्यादा लोगों को ढूंढ भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा फाउंडर्स आई डोंट थिंक सो कि अवेलेबल हो, और कुछ के यूजर नेम ही ऐसे होते हैं, आप अगर आपकी स्टॉकिंग पावर अच्छी है तो आप ढूंढ लोगे, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं ढूंढ सकते, और वो उसमें रिस्पॉन्स भी नहीं करते। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म टू रीच द राइट पीपल। एंड देन व्हाट इज नेटवर्किंग? इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस थ्रू योर कॉन्टेक्ट्स। अब देखें, हमें एक टर्म सिखाई जाती है कि पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे नो। अगर अब मुझे, मैंने जैसे आपको कहा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें रेफरेंस के थ्रू मिली हैं, और ये नहीं, इट्स नॉट बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप रेफरेंस के थ्रू जाओ। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, रेफरेंस से जॉब मिली, और ये सब थिंग ऑफ द पास्ट। अगर आप अपने रेफरेंसेस बना लोगे, लेट्स से आई एम अ गुड इंजीनियर, अगर कोई मुझे जानता है कि आई एम अ गुड इंजीनियर, और अगर वो किसी कंपनी में मुझे रेफर कर रहा है बिकॉज आई एम अ गुड इंजीनियर, तो देर इज नो बैड इन दैट, बिकॉज मैंने ये कनेक्शन बनाया हुआ है सो दैट पीपल नो मी। और इसलिए आपको भी ये कनेक्शंस बनाने होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है लिंक्डइन पे। एंड यस, वी रिलाई ऑन आवर नेटवर्क मोर देन एवर, बिकॉज जॉब मार्केट इतनी तंग हो गई है ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना मुश्किल हो गई हैं। आप सीवी ड्रॉप करते हो, आप लिंक्डइन में अक्सर इजी अप्लाई यूज करते हो, जो कि ठीक नहीं है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। जब तक आप एचआर को या किसी बंदे को उस कंपनी में नहीं जानते, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और मैं जानने का ये मकसद नहीं है कि आप उसके फ्रेंड हो या आपने बहुत, आपको उसको एक मैसेज ड्राफ्ट करके या उसके साथ कनेक्शन बना के अपने बारे में बताना है। तो यस, नेटवर्क्स डू वर्क, एंड इस टाइम पे, इस डिजिटल दौर में नेटवर्क सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। एंड दीज आर जस्ट लाइन्स, जस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल से, लाइक प्रोफाइल डेवलपमेंट। और मैं जल्दी से अपनी प्रोफाइल से कुछ आपको चेक पॉइंट्स बताऊंगी, और उसके बाद आई एम जो जस्ट गोना से लाइक एक मैं कॉल दूंगी जिसकी प्रोफाइल सामने सबसे पहले, जिसने अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड किया ऑन द चैट, टॉप 3 प्रोफाइल्स आई एम गोइंग टू रिव्यू, एंड आई एम गोइंग टू टेल कि इसमें आप किस तरह चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स और चीज़ों पे जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल। ठीक है, कि ये आपका अगर आप अपनी प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है लिंक, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपकी, जस्ट गिव मी मिनट, ये, हाँ, आपकी पब्लिक प्रोफाइल ओपन हो जाती है। और यहाँ पे आपका जो यूआरएल है, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल अपना नेम लिखो, क्योंकि आपका नेम आपका कीवर्ड होता है इसमें। आप लेट्स से कि अगर आपका नेम अवेलेबल नहीं है तो आप अपने नेम में जस्ट एक्स्ट्रा ए या एन डाल लो, बट स्टिक टू द कीवर्ड। और उसके बाद ये आपकी आपने देखना है, मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप उसको पब्लिक प्रोफाइल वाली चीज़ ऑन करनी है, सो दैट पीपल कैन सर्च फॉर यू। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली,
अच्छा, कवर फोटो। अब कवर फोटो आपको किस तरह, लाइक अभी तो मैंने एक कोट डाली हुई है, आई एम नॉट ऑफरिंग एनी सर्विसेज। इससे पहले आई यूज टू गिव ब्रांड अवेयरनेस सर्विसेज, लाइक ब्रांड, आई वाज वर्किंग डायरेक्टली ऑन द ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट थिंग। तो मैंने एक डाली हुई थी कि आई कैन हेल्प योर ब्रांड टू ग्रो। तो कवर फोटो मैटर करता है कि जस्ट इफ यू आर गिविंग एनी सर्विसेज तो वो आपको दिखा सके। आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी पिक्चर, अब अगर आपके पास एक पोर्ट्रेट पिक्चर है, उसका बैकग्राउंड, अक्सर लोग बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, मुझे अक्सर बैकग्राउंड रिमूव पसंद नहीं है। अगर आपके बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो आपने बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। तो मैं आपको बता रही थी लिंक्डइन, आपकी आपकी पिक्चर, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, अगर आप कुछ ने सेल्फी लगाई होती है, जस्ट टेक आउट वन डे, अपने किसी दोस्त से कहो, हम थोड़ा सा तैयार होके अपनी एक आपकी ना, क्योंकि मैं अक्सर लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही होती है, मैं देखती हूँ कि उनकी, क्योंकि जब आपको रिक्वेस्ट आती है ना तो आपकी हेडलाइन ये बहुत प्रोमिनेंट हो रही होती है। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस यार, सिर्फ ये आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत डिफाइन करते हैं ये चीज़ कि आपने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है या नहीं। तो इस वजह से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे काम करना है, इट शुड बी प्रोफेशनल। अबाउट अबाउट मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगी। मैंने अपना अबाउट इस तरह का किया हुआ है बिकॉज आई एम करंटली नॉट लुकिंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। तो मैंने इसको बिल्कुल एक कोट के अकॉर्डिंगली रखा हुआ है कि दिस इज माई मंत्रा टू लिव बाय। बट अबाउट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। आई विल बी शोइंग यू सम कि जिसमें आप अपने बारे में बताते हो, यस आई एम दिस, आई एम, लेट्स से आई एम स्टडिंग हेयर और दीज आर माई स्किल्स, आई हैव हेल्प फ्यू पीपल विद दिस। मैं आपको उनकी प्रोफाइल बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह अपनी स्किल्स को अपने अबाउट में शो किया हुआ है। फिर आ जाते हैं फीचर पोस्ट। अब मेरी ये फीचर पोस्ट है, दीज आर द टॉप हाइलाइट्स, लेकिन यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स, जब आई वाज स्टूडेंट इन एयर यूनिवर्सिटी तो मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होते थे कि दीज आर द प्रोजेक्ट्स आई वर्कड ऑन, ठीक है। और ये आपके डिपेंड करता है कि आप अपनी टॉप पे पोस्ट लाना चाहते हो, कमेंट्स लाना चाहते हो, वीडियोस। मैंने अपनी पोस्ट लाई हुई है। ये आपका एक्सपीरियंस सेक्शन है। और अब जैसे मेरा तो फिलहाल एक्सपीरियंस ये है, लेकिन अक्सर लोगों ने, आप स्टूडेंट हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड अबाउट सोसाइटीज वर्क। यस, आप लोग देख रहे होते थे, अक्सर लोग आके कहते हैं कि नहीं, आप सोसाइटीज का काम वॉलंटियर होता है, आप एक्सपीरियंस में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब आप क्या ऐड करो, तब तक के लिए अपने एक्सपीरियंस में, जैसे मैंने भी अभी तक अपने एक्सपीरियंस में ऐड किया हुआ है बिकॉज इट वॉज अ हाईलाइट, आई लर्न समथिंग आउट इट, ठीक है। दो इट वॉज नॉट पेड, बट मेरे लिए इस चीज़ ने अपॉर्चुनिटीज बनाई, तो मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड किया हुआ है। और एक्सपीरियंस सेक्शन जस्ट आपने आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे जाके डिटेल में अपने बारे में ऐड कर देना है। आप अपने स्किल्स भी यहाँ पे शोकेस करा दे सकते हो। आप लेट्स से जैसे डिस्क्रिप्शन भी, अपने स्किल्स की डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। और जेडी जैसे मैंने अभी ऐड नहीं की हुई, बट यहाँ पे आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर डालनी है। लेट्स से इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो आपका कोई रिक्रूटर अगर आपकी प्रोफाइल देख रहा है तो यहाँ पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड होना बहुत जरूरी है, सो दैट पीपल नो कि आप इस जगह पे क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है। लेकिन इट्स अ चॉइस, currently I'm not need of it, that's why I'm not adding it। और उसके बाद ये आपके लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं कि जो भी आपने सर्टिफिकेट्स किए हैं ऑन प्रोजेक्ट, जैसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मशीन लर्निंग पे किया हुआ है। और एजुकेशन, एजुकेशन ऐड, अच्छा इसमें भी एक चीज़ होती है कि अक्सर लोग एजुकेशन तो ऐड करते हैं बट वो राइट यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं करते, या वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट को उस तरह टैग इन नहीं करते। तो आप, ये चीज़ बहुत नॉन, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगती है। तो आपने क्या करना है, स्कूल पे जाके ऑलवेज सर्च फॉर यूनिवर्सिटी। अगर आपकी नहीं है, लेट्स से अक्सर लोगों के स्कूल्स होते हैं, जैसे मेरा जो कॉलेज था वो नहीं आ रहा था, लाइक आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाईटेक कॉलेज, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी डाल दी बिकॉज इट स्टिल सीम्स रेलिवेंट। बट अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड नहीं है, आपने जस्ट उसको रिमूव कर देना है, नो नीड टू ऐड दैट। आपका जो मैटर करता है वो आपका बैचलर्स मैटर करता है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज का लिंक्डइन पे अकाउंट है, तो आपने उस तरह ऐड करना है। वॉलंटियर वर्क, हाँ, जो आपका काम होता है ना, जो आपका सोसाइटीज में काम होता है, इट एंड्स अप इन वॉलंटियर वर्क, वो आपका वॉलंटियर वर्क होता है। तो जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी या जॉब मिल जाए तो उसको आप अपने वॉलंटियर वर्क में ऐड करना शुरू कर दिया करें। और दीज आर द वेज, जैसे मेरा कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स है, और जो मेरी लास्ट जॉब थी वेयर आई यूज टू वर्क ऑन सम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, और मेरा काम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड पार्टनरशिप्स लाना था। तो इस वजह से मैंने मशीन लर्निंग भी ऐड किया हुआ है। और दिस इज़ वन ऑफ द स्किल आई नो, हाउ टू कोड एंड आई नो अबाउट एआई स्टफ।
So before coming into partnership side, I specialized in AI. तो इस वजह से आप अपने स्किल्स को बहुत रेलेवेंट करके यहाँ पे ऐड करें। और दीज आर द रिकमेंडेशन जैसे आई वर्क विद आमना जिया, आई वर्क विद उस्मान, एंड उनसे मैंने कहा कि जस्ट राइट मी अ रिकमेंडेशन। और ये शो करवाता है कि जिस जिस जगह आपने काम किया है, आर यू ऑथेंटिक पर्सन और नॉट। तो रिकमेंडेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप यहाँ पे सिंपली लोगों को आस पर रिकमेंडेशन में जाकर रिकमेंडेशन मांग सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन उन लोगों से मांगनी है जो आपको जानते हो। और कुछ आपके अवार्ड्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, अब आप शायद सोच रहे हो कि ये कहाँ से आएगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिसोर्सेज, ऐड प्रोफाइल सेक्शन एंड ओपन टू से आप हायरिंग, फाइंडिंग न्यू जॉब, ये वाले सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जिसको आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। और ऐड प्रोफाइल सेक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता रही थी कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में ऐड करो। फिर रिकमेंडेड में आप अपनी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में भी ऐड कर सकते हो, जो कोर्सेज आपने किए हैं, आपके प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपकी लेट्स से कि आप इंजीनियर और आपको अपना प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, तो अपने प्रोजेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो ये थोड़ा सा लिंक्डइन प्रोफाइल का ओवरव्यू था, और ये मैं इस पे और डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज अगेन इसके लिए मैं आपको एक चेकलिस्ट शेयर करूंगी। बट हम थोड़ा जाते हैं मैसेजेस पे। अच्छा, अब अक्सर लोगों का सवाल था कि हाउ टू कनेक्ट विद पीपल एंड ऑल दैट। अब ये देखें कि कुछ मुझे मैसेजेस आए हैं, और जो सबसे पहले AOA हाउ आर यू, इस तरह के मैसेजेस रोज आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस तरह का मैसेज आपको कोई करेगा। अब लिंक्डइन इज नॉट फॉर चैटिंग, कि अगर मुझे कोई कहे सलाम हाउ आर यू, मैं उनसे कहूँ हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, ऐसे नहीं होता। ठीक है, 10 लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनसे चैटिंग तो नहीं स्टार्ट करूंगी ना। और सेम गोज फॉर यू, अगर आपको उस तरह का मैसेज आए, नेवर रिस्पॉन्ड, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। मैंने एक मैसेज का भी चेकलिस्ट स्टार्ट किया है कि आपको मैसेज किस तरह का करना चाहिए, और एक एग्जाम्पल भी डाली है, उससे आप लोग सीख सकते हो। तो ऐसे मैसेज ना किया करें, इसका आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और हाँ भी गया रिस्पॉन्स, तो अगला बंदा भी बहुत ज्यादा फारिग होगा जो आपको इन मैसेजेस का रिस्पॉन्स कर रहा है। और चलें, कुछ लोग ना मैसेज में थोड़ी मेहनत करते हैं, बट उनकी मेहनत का फायदा नहीं होता। अब जैसे इन्होंने मुझे मैसेज किया, हाय होप यू आर हैविंग अ ग्रेट वीक, आई एम दिस, आई एडमायर द वर्क यू आर डूइंग एट करेक्ट विद मरीन। एक्चुअली जब ये मैसेज मुझे आया, मैंने जस्ट 1 मंथ, मुझे आई गेस 20 डेज हुए थे विद दिस कंपनी। तो अब हाउ कैन समवन, उन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखा भी नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि आई नोटिस कि आपका इनके साथ कनेक्शन है और आप इस ग्रुप में हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट योर वर्क एट करेक्ट विद मेरी। अब देखें, फिर मैंने उनको जाके प्रोफाइल, मैं ट्राई करती हूँ मैं मैक्सिमम लोगों को लिंक्डइन पे रिस्पॉन्स करूँ, बट आपके पास कोई एक होता है कॉल टू एक्शन कि आपने लिखा गया। अब मैंने जाके उनकी प्रोफाइल चेक की, और वो थे मशीन लर्निंग इंजीनियर, और जो मेरा काम है करेक्ट विद मनी, इट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप्स। कोई सेंस नहीं बन रही थी, और मुझे, मैंने लिटरली सोचा इस पे 5-10 मिनट के मैं इनको रिस्पॉन्स क्या करूँ, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं करना, बिकॉज इन्होंने ये मैसेज या तो AI से लिखवाया है या खुद भी लिखा है, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनती। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखो, उसमें लिखा हुआ है कि आई हेल्प पीपल विद पर्सनल ब्रांडिंग। आप बात करो पर्सनल ब्रांडिंग की कि हाय आई वांट टू नो मोर अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। तो इस मैसेज से पता चलता है कि आपको अपना मैसेज रेलेवेंट बनाना है, सो दैट पीपल कैन गेट टू नो यू और आपको रिस्पॉन्स करें। फिर मुझे मैसेज आया है कि फर्दर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब आई एम नॉट अ रिक्रूटर, ठीक है, मैं खुद एक जॉबियन हूँ फिलहाल। तो हाउ कैन आई गिव यू अ जॉब। और मुझे रोज ही ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, हे मैम कैन आई गेट अ जॉब, कहाँ से दूँ जॉब, लाइक लिटरली। तो आपको कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है, ये नहीं कि आप हर बंदे को जाके कहे हाय आई नीड अ जॉब। आपको वो कैसे जॉब देगा जब वो खुद एक जॉब कर रहा है। फिर एनी जॉब अवेलेबल इन रियाद, आई हैव नेवर बीन टू रियाद, मुझे क्या पता उधर जॉब अवेलेबल है या नहीं। फिर अब देखें, मैंने आपको जैसे कहा ना हाय हाउ आर यू का रिस्पॉन्स नहीं करना, मैंने एक दफ़ा रिस्पॉन्स कर दिया, हाय अलीशा ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, मैंने कहा ग्रेट होपिंग द सेम विद यू, व्हाट यू डू अलीशा। मेरी प्रोफाइल में सब लिखा हुआ है कि मैं क्या करती हूँ, मैं आपको क्यों बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। आपको अगर जानना है आप वहां जाके, आप बताएं इस मैसेज का रिस्पॉन्स बनता है, नो। तो ऐसे मैसेजेस अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहे तो कभी भी रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, बिकॉज आप इररेलेवेंट सवाल पूछ रहे हो। और लिटरली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि इररेलेवेंट, आपको लिटरली अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम CEO, सम फाउंडर्स जिनके पास आप जॉब करना चाहते हो, सम रिक्रूटर्स, उनको आप जैसे बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो आपके मैसेज का रिस्पॉन्स क्यों करें।
जब आप एक इररेलेवेंट बात कर रहे हो। फिर मुझे ये मैसेज आया, आई केम अक्रॉस योर पोस्ट अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन जॉब एप्लीकेशन। और अगर आप देखें तो उसने पहले मेरी एक जॉब के साथ, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज, आई रिस्पॉन्डेड टू दैट। आई एम अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट एंड मेंटोर एंड दिस, एंड मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है, एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपर्टीज। ठीक है। अब पहले उन्होंने अपने मेरी एक जॉब पोस्ट के साथ अपने आप को रिलेट किया, फिर अपने बारे में बताया, और फिर एक कॉल टू एक्शन दिया कि मैं आपके साथ इस वजह से कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो दिस इज द राइट मैसेज। दो अगर मैं आपको जॉब नहीं दे सकती तो आई कैन स्टिल हेल्प यू विद द स्टफ आई एम डूइंग, राइट। तो आपको अपना मैसेज बहुत ज्यादा कस्टमाइज और सोच समझ के करना है। इस वजह से आप लोगों को लिंक्डइन पे रिस्पॉन्सेज नहीं आते। तो दिस वाज अबाउट द मैसेजेस। अब हम जाते हैं कि कुछ लोगों की प्रोफाइल जो आई हैं हम उनको रिव्यू करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द क्वेश्चंस। आप लोगों को जो सवाल हुए हम उस पे जाएंगे, सही है। और अभी भी अगर आपके सवाल है तो आप चार्ट में लिखना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोफाइल है वो है अली जैन की। ठीक है, हम इसको रिव्यू करते हैं। आई विल बी रिव्यूइंग 3 प्रोफाइल्स, टॉप 3 प्रोफाइल्स। ठीक है। ठीक है, ये अली जैन की प्रोफाइल है। अच्छा अली, आपका कवर फोटो अच्छा है, बट इसमें ना मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये डिस्ट्रैक्शन है आपकी। देखिए पिक्चर यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। पिक- आपको अपना जो कवर फोटो होता है ना, इट्स लाइक बैनर, इट शोज यू। तो आपने मशीन लर्निंग इंजीनियर को बड़ा करते, बट क्या स्किल्स हैं आपके? एक आपने नंबर तो ऐड कर दिया, आपको थोड़ा स्किल्स का ब्रेक डाउन करना है। ठीक है। अली जैन, अली जैन तो यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है। तो और जैसे आपने यहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐड किया हुआ है, तो आपका कवर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सर्विस। सही है। और हाँ, जैसे आपने वेबसाइट है, वेबसाइट को ना आपने माय सोशल लिंक्स या यहाँ पे भी वेबसाइट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऐड करो। और कवर को थोड़ा चेंज करो, बिकॉज आप कवर में वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी नजर आ रही है। तो हाउ दिस इज डिफरेंट। बाकी आपकी ये चीज़ ठीक है, लाइक आपने इसको कस्टमाइज किया हुआ है, विच इज़ गुड। अच्छा, जैसे कि आपने अपने बारे में ये लिख दिया कि आई वर्कड ऑन मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट। नाउ कम्स इन थोड़ा सा और डिटेल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये मेरी सीनियर है, इनसे मैंने मोमो, अच्छा लेट्स चेक हर प्रोफाइल। ठीक है। और अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कुछ रैंडम लोगों की, बिकॉज देखिए, अब जैन है मशीन लर्निंग इंजीनियर, इसलिए मैं इनको एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की एग्जांपल दूंगी, बिकॉज आपको अपने आइडियल सेट करने होते हैं कि आप कैसी अपनी प्रोफाइल चाहते हो। तो अभी मैं सारी एग्जांपल्स नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो तो आप जाके लिंक्डइन पे चेक करो कि और कौन मशीन लर्निंग इंजीनियर है, वो किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल किस तरह सेट की है। और इसको कॉपी नहीं, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रहे हो। ठीक है, इट्स कॉल्ड रिसर्चिंग, नॉट कॉपिंग। तो जैसे इन्होंने अपने बारे में कितना थोड़ा डिटेल में डाला हुआ है, अब ये डिटेल ज़रा ज़्यादा है, लेकिन कीवर्ड्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रोफाइल में आ जाए तो इसका आपको फ़ायदा होता है। और एक और बात, मैं अक्सर लोगों की प्रोफाइल्स शेयर करती हूँ मीटिंग्स में, तो लोग जाके सेम लोगों की प्रोफाइल छाप देते हैं। बिल्कुल सेम नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करके आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज करना है। तो उन्होंने अपना पूरा जर्नी लिखा हुआ, फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज में उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ कि ये मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज है। बट ओबियसली शी इज लाइक वेरी सीनियर, तो उनके पास और ज़्यादा होंगी, और अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपकी जो क्लास वर्क में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सॉरी स्किल्स हैं, आप वो ऐड कर दो। जैसे हम डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, मेरे अगर जो कोर्सेज थे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स एंड ऑल दैट, मैं वो ऐड कर देती। तो मशीन लर्निंग अगर आप इंजीनियर तो उसमें और भी जो लैंग्वेजेस बिल्कुल थोड़ा सेपरेट आउट करके करो। तो अगर मैं इनकी प्रोफाइल में आती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि इनका जो बैकग्राउंड है क्या है, इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है। यहाँ पे इनकी प्रोफाइल का मुझे डिटेल्स पता चल गई हैं, और ईमेल यहाँ पे डाली हुई है इन्होंने। ठीक है, समवन वांट्स टू कनेक्ट, यहाँ पे उनके जाके वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ये टॉप स्किल, और ये उन्होंने सर्विसेज वाला सेक्शन ऐड किया हुआ है, और ये उन्होंने अपने काम के रिलेटेड फीचर फीचर की हुई है पोस्ट। ये आपने चीज़ ठीक की है कि आपने अपने काम से रिलेटेड की हुई है, द टेक बॉस। बट इसमें आप मल्टीपल चीज़ें भी फीचर कर सकते हो, विच इज़ गुड।
अच्छा, अब एक और चीज़ जो आप थोड़ा प्रोफेशनल, लेट्स से कि अभी इन्होंने कायदे आज़म का डाला हुआ है कि आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर एट कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट श्योर ये ग्राफिक डिज़ाइनर आप पूरी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट की कर रहे हो। अगर इंस्टीट्यूट की कर रहे हो विच इज़ गुड। द टेक बॉस अगर ये आपका पेज है तो इसका मैं कहूँगी कि लिंक्डइन पेज बना के इस पे यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि दिस डजंट मेक सेंस। आई एम नॉट श्योर वेयर यू आर वर्किंग। तो ये यहाँ पे अगर पेज होता तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी और इनहेंस हो जाती। तो इफ़ यू आर लाइक बॉस ऑफ दिस साइट तो इसका थोड़ा सा लिंक्डइन पेज बना लें तो इट वुड बी अलॉट बेटर। ये आपने जैसे डाला हुआ है इसको आप रिमूव कर सकते हो, बिकॉज आई नो यू स्टडीड देयर, बट उसका सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट नहीं आ रहा बिकॉज उसका कोई पेज नहीं है। और अगर कोई लोग सर्च भी करना चाहे तो वो गूगल पे जाके सर्च नहीं करेंगे, पेज होता बेहतर है। आप कायदे आज़म में पढ़ रहे हो, दिस इज इनफ, तो यू कैन रिमूव दैट। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑल गुड। और ये देखें अगेन, आपकी अगर ये सोसाइटी है तो इसका पेज बनवाएं और वो डालें। अगर पेज नहीं है तो आप इसको निकाल दें, अपनी सीवी में आप ऐड कर सकते हो, रिज्यूमे में आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डजेंट मेक सेंस बिकॉज आई कैन नॉट ओपन इट। अब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, मैं इसको ओपन नहीं कर सकती। अ, बाकी बेस्ट है, आपने अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में डाला हुआ है, इट्स ऑल गुड। लेट्स मूव टू अनदर प्रोफाइल। थैंक यू जैन फॉर शेयरिंग इट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, आई हैव अ क्वेश्चन, डज स्किल एंडोर्समेंट मैटर्स? यस, इट मैटर्स अ लॉट। लेट्स से कि अगर किसी बंदे को एंडोर्समेंट आई हुई है मशीन लर्निंग पे, जैसे अली को आई हुई है 50-60, तो दैट मीन्स पीपल नो हिम फॉर मशीन लर्निंग। तो वो मैटर करता है, बट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपकी एंडोर्समेंट मिल जाए प्रोफाइल पे, स्किल्स पे, तो इट्स गुड। लेकिन रिकमेंडेशन ज़्यादा मैटर करती होती हैं, जो आ रही होती हैं कि यस जैन वर्क विद मी एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, ही हैज़ दिस स्किल। तो इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जो मैटर कर रही होती है। पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। अगर आप एक इंजीनियर हो, जो भी लेट्स से कि कोई और प्रोफेशन भी है, तो पोर्टफोलियो पे ज़रूर काम करें। पोर्टफोलियो पे बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि अपना पोर्टफोलियो आप किस तरह बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ वन थिंग, लेकिन आप जब किसी रिक्रूटर को रीच आउट करते हो तो अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा डाल दो कि मैंने इन इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। वो आपकी मैं जब अपने लास्ट जॉब में अक्सर हायरिंग का मुझे काम दिया जाता था, तो मैं देखती होती थी कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन कैसी बनाई हुई है, और लिंक्डइन अगर कोई टेक्निकल बंदा है वो लिंक्डइन पे इतना नहीं है तो उन्होंने अपना टेक्निकल पोर्टफोलियो कैसा बनाया हुआ है। तो दैट्स दैट, बट यस इट्स इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच। अब हमें सलमान अली की आई हुई है प्रोफाइल, लेट्स इनटू दैट। हम्म, ठीक है सलमान, आपकी पिक्चर अच्छी है बट बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड येलो यूज किया हुआ है, ये आपके कवर के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो वो थोड़ा प्रोफेशनल चीज से ये निकल रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब इसके कलर्स को एडजस्ट करें। और प्रोफेशनल कलर्स होते हैं कुछ, वाइट ग्रेश कलर है जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं, तो आपने देखना है कि कौन से प्रोफेशनल कलर्स अवेलेबल है, उनके कोड्स पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर के जो बैकग्राउंड है उसके कलर्स को एडजस्ट करना है। और अगेन आपने थोड़ा सा वही सेम चीज़ की हुई है जहन वाली, कि आपने अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पे। अगर आप लेट्स से कि अगर अगर आपको अभी कवर नहीं समझ आ रही तो आप कवर ना डालो, या कोई कोड डाल दो जिसपे आप लिव बाय करते हो या एनीथिंग। लेकिन आपका नाम यहाँ पे भी अवेलेबल है, डजंट मेक सेंस। क्यू इंजीनियर, टॉप नॉच प्रोडक्ट, मतलब ये चीज़ आप अबाउट में डाल सकते हो, सही है। और जैसे अब देखें माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। अच्छा, यहाँ पे ना जो आपका अबाउट होता है, मैंने बायो होती है, वो बहुत मेन होती है। जैसे आपने लिखा हुआ है ना, अ डेडिकेटेड क्यूए इंजीनियर, तो क्यूए इंजीनियर को यहाँ आना चाहिए। लेट्स से कि आप कहीं एज अ क्यूए इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो क्यूए इंजीनियर एट द रेट हेयर आई एम वर्किंग, लाइक उस जगह का नाम। या माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की जगह आपने यहाँ पे लिखना है क्यूए इंजीनियर, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर आप डाल सकते हो एमएलएस से करके, बट सेकंड नंबर पे, सेकेंडरी है। फर्स्ट पे आपका काम आ रहा होना चाहिए। और आप इतनी लाइक एक्स एक्स हैक क्लब लीड, इट्स नॉट कंपल्सरी ऑन द बायो। बिकॉज अगर कोई आपने इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको आके नीचे आपकी प्रोफाइल में देख लेगा, जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो इट शुड बी क्यूए इंजीनियर। अगर आप अपनी कंपनी का नाम नहीं डालना चाहते बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट पेइंग यू टू एड अबाउट दैम ऑन योर बायो, तो आप सिंपल कह दो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, इट्स अ कीवर्ड। और लोग आपको लेट्स से कि किसी को इस बंदे की तलाश हुई जो आप काम कर रहे हो, तो कीवर्ड्स में आपको अगर वो सर्च करते हैं तो आपका नाम आएगा। और कीवर्ड्स का भी थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा जॉब रोल है, मैं सब कीवर्ड्स के बारे में नहीं बता सकती। जैसे मेरी प्रोफाइल अगर देखा जाए, रैंक करती है पार्टनरशिप्स पे,
और लोग मुझे रीच आउट करते हैं, मुझे अक्सर अपॉर्चुनिटीज आती हैं पार्टनरशिप्स की, तो ये हे वी आर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप मैनेजर, पार्टनरशिप लीड। अभी लास्ट जो अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली वो भी इसी वजह से मिली कि मैंने सिर्फ अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ पार्टनरशिप लीड हेयर या ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। तो मुझे ये दो अपॉर्चुनिटीज चाहिए और ये दो मेरी बायो में हैं। और बाकी डिटेल्स आपकी प्रोफाइल में नीचे आ जाती हैं। तो यस, इसको आपने देखना है फॉर्मर वीपी। अब फॉर्मर हो चुका है तो नो नीड टू ऐड हेयर, ठीक है आप इसको। और यहाँ पे जैसे सी सूट इन्होंने कुछ स्किल्स लिखे हैं, यस अपने आप स्किल्स ऐड कर सकते हो, बट रेलेवेंट स्किल्स टू द जॉब यू आर लुकिंग फॉर, और अगर आप द जॉब यू आर एस्पायरिंग फॉर, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। वर्क क्लोजली विद इंजीनियर एनालिस्ट। अब देखें, अब आपने ना बहुत डिटेल्स डाली हुई हैं, मतलब मैं इसको रीड नहीं करूंगी लिटरली, बिकॉज यहाँ पे आपके बारे में आप वर्क क्लोजली कर रहे हो बट इट्स नॉट दैट रेलिवेंट। अगर कोई क्यूए इंजीनियर है वो तो ओब्वियसली वो और इंजीनियर्स एंड एनालिस्ट के साथ काम कर रहा होगा। तो इसको आपने रेलेवेंट बनाना है। जैसे मैंने जहन को एक एग्जांपल दी कि आप अपना काम बताओ कि आई एम अ क्यूए इंजीनियर एंड दीज आर माय स्किल्स, दिस इज द समथिंग आई लव, ठीक है। और अगर जैसे आपने कुछ लिया है एम्प्लॉय वर्कफोर्स डायग्राम, अब ये ना पैराग्राफ होने की वजह से इसकी डिटेलिंग कम होगी। अगर इट्स समथिंग दैट शुड बी हाईलाइटेड, आप जैसे मैंने आपको मोमेल की प्रोफाइल की एग्जांपल बताई, आप हाईलाइट कर दो, आप उसको पॉइंट्स में लिख दो अगर आपके दीज आर द कोर स्किल्स। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर अबाउट, और इसमें कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो मैं आपको कहूंगी कि आप देखें, और मैं आपको चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी कि आपका कैसा होना चाहिए। फीचर आपका गुड है कि हाँ, अक्सर ये इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है कि अपनी रिज्यूम में अपने फीचर पोस्ट पे डाला हुआ है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पोस्ट समवेयर, जॉब समवेयर, तो आप अपने फीचर में अपना रिज्यूमे डाल दें अगर आपके पास और चीज़ ऐड करने के लिए नहीं है। और इन्होंने हैंड्स ऑन जावा पे कोई सेशन दिया है वो डाला हुआ है, विच इज़ आल्सो गुड, बिकॉज अगर कोई रिक्रूटर आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि ही हैज़ सम नॉलेज ऑन जावा। तो दिस इज़ गुड। बाकी आपने ये डिटेल इन्होंने अपनी ऐड की हुई है, स्किल्स ऐड की हुई हैं, ये सब फाइन है, ये इतना ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीटा अल्फा, इसको आप कॉन्साइज कर सकते हो, इवन इफ इट्स नॉट अ जॉब, इट्स जस्ट अ वॉलंटियर वर्क, आप उसको कॉन्साइज करके जस्ट एक चीज़ ऐड कर दो, ठीक है। और यस, आप सिंपल इसमें कह दो बीटा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, दैट इनफ, दैट इज इनफ। और अगेन आप ये अपना कॉलेज वाला रिमूव कर दो। अगर आपने ए लेवल किया तो आप यहाँ पे कैम्ब्रिज वगैरह डाल सकते हो, पर इट्स इफ नॉट देन नॉट, डू नॉट ऐड इट। गूगल को आप यहाँ पे गूगल का प्रॉपर ना नेम यूज करके करें, बिकॉज ये वाली चीज़ अगेन नॉट रेलेवेंट, सही है। ये भी आपको मैकेंजी का भी आपको मिल जाएगा अकाउंट, तो आप उनको प्रॉपर टैग करो ताकि इसमें शो होना चाहिए। और आपको रिकमेंडेशंस भी मिली हुई हैं, इट्स गुड, और ट्राई गेटिंग मोर रिकमेंडेशंस which will build your profile even more. Overall, all good, but these are the changes you need to do. I hope I clarified. Let's move to the next example, next profile, sorry. अच्छा, दिस इज द लास्ट प्रोफाइल। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करेंगे। और आल्सो इफ़ यू गाइज वांट मी टू रिव्यू योर प्रोफाइल, तो आप लोग मुझे एक प्रॉपर, पहले अपनी प्रोफाइल, आप इस पे भी मैं आती हूँ, लेकिन इसमें ये होगा कि आप जैसे ये सेशन आपने लिया, आपने अपनी प्रोफाइल की एक पिक्चर लेनी है, और जस्ट राइट आफ्टर दिस सेशन, और फिर इस सेशन के बाद जो आपने इम्प्रूवमेंट की हो उसकी पिक्चर लेनी है, यू हैव टू पोस्ट अबाउट इट कि आई हैव इम्प्रूव माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू, तो आपने मुझे वहाँ पे मेंशन करना है अपनी पोस्ट में, एंड आई विल रिव्यू योर प्रोफाइल। तो ये भी, दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन डू जस्ट टू रिव्यू योर प्रोफाइल, बिकॉज ऐसे रैंडम लोग मुझे कहना शुरू कर देंगे ना कि आप प्रोफाइल रिव्यू कर दें, और उन्होंने कुछ किया नहीं होगा, तो इस पोस्ट के थ्रू मुझे पता चलेगा कि यू एक्चुअली वर्कड ऑन योर प्रोफाइल एंड देन यू केम, और यू कैन डिलीट द पोस्ट लेटर, बट इससे ये होगा कि this will be one of your posts that you worked on your LinkedIn. It can be a post on LinkedIn, और इससे आपको फायदा भी हो सकता है, लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं, लोग सीख भी सकते हैं कि ये आपने सीखा, आप अगले लोगों को बताओ कि मैंने आज ये सीखा कि अपनी प्रोफाइल इस तरह इंप्रूव करनी है, मैंने इस तरह इंप्रूव की है, एंड नाउ आई वांट यू टू रिव्यू इट, और बाकी लोग भी इससे सीखेंगे। एनीवेज, वट इफ़ वी कांट कस्टमाइज लिंक एज पर नेम, अगर आप अपने नेम से कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो कि हो जाता है, तो आप कुछ, लेट्स से आपका नाम अरीबा है, तो आप अरीबा बतूल, लेट्स से यू आर लकी नंबर 5,
12, आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। बट आपका ये मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स मी ट्राई टू फाइंड एन एग्जांपल जिसमें मैं देख रही थी कि लोगों की प्रोफाइल, इसका कहना है क्योंकि आप लोगों ने अभी जो प्रोफाइल भेजी है ना, आप सब ने उसको कस्टमाइज किया हुआ है, कस्टमाइज करके भेजी है। लेकिन इफ़ आई कम अक्रॉस एनी एग्जांपल जिसमें मैं आपको बता सकूं कि मेरा कस्टमाइजेशन से क्या मकसद था, वो विल चेक दैट लेटर। जस्ट लेट मी रिव्यू वन लास्ट प्रोफाइल और उस पर भी हम आ जाते हैं। ओके। ये इनकी प्रोफाइल मैं कैसे रिव्यू करूं? अच्छा, इरम मुख्तार की, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप भी अगर बन जाते हो तो आपको भी अपनी प्रोफाइल पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी आप प्रेसिडेंट नहीं हो, तभी आप यहाँ बैठे हुए हो। एनीवेज, अच्छा, इरम की प्रोफाइल हम रिव्यू करते हैं। थैंक्स इरम फॉर शेयरिंग दिस। इरम, आपने भी सेम मिस्टेक की हुई है कि आपने अपना नेम अपने कवर फोटो में डाला हुआ है। आपका नेम ऑलरेडी एडिड है, तो अपने कवर फोटो पे थोड़ा काम करें। आप देखें कि अगर आप लाइक पेन टेस्टर है, मुझे इसके बारे में नहीं पता बिल्कुल, तो सिमिलर फील्ड में जो लोग हैं उनकी कवर्स कैसे हैं, आप यहाँ पे फॉर अ टाइम बीइंग एक कोट लगा दें जिससे आप लिव बाय करती हैं। लेकिन व्हेन यू हैव सर्विसेज एंड थिंग्स टू शो टू द वर्ल्ड, या आपका कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं, तो तब आप अपना कवर फोटो देखें। और कवर फोटो के टेम्पलेट्स कैनवा पे भी पड़े हुए हैं, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है? और आपने साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट, अच्छा, अक्सर लोग ना लिख देते होते हैं साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट, बट आई वुड से आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखो, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी फील्ड है। किस चीज़ के बारे में आप इंथुजियास्ट हो, तो अपने स्किल्स थोड़ा करो। और जैसे आप यहाँ पे आईटी में बीएस आईटी कर रही हो, तो थोड़ा उसके बारे में लिखो, सही है? आपका ना ये टैग लाइन होते हैं, जैसे मुझे एक एग्जांपल बहुत पसंद है। हम ब्रांड्स के बारे में जब पढ़े थे बैक इन पाकिस्तान, तो उसमें था कि डालडा, डालडा के बारे में आपको पता चलेगा, इट्स ऑयल, पता होगा, ऑयल है ये। तो उसमें कहते हैं जहाँ महमता वहाँ डालडा। अच्छा, ये बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को भी इस बारे में पता होगा। ये डालडा वालों की टैग लाइन है, ठीक है? कि उन्होंने मदर को रिलेट किया कि जैसे हमारी माएँ किचन में हमारे लिए खाना बनाती हैं, तो जहाँ महमता वहाँ डालडा, बिकॉज डालडा भी वहाँ पे होगा। तो समझ लें कि ये जो आपकी बायो होती है ना, ये आपकी टैग लाइन है। अब ऐसे डालडा जैसी आप तो नहीं डाल सकते, बट उसको थोड़ा करें। जैसे मैंने अपनी टैगलाइन बनाई हुई है, आई एम अ ब्रांड एंड पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है? इसमें थोड़ा सा आप चैट जीपीटी करो, आप गूगल पे देखो कि मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड क्या टैगलाइन मुझे सूट करती है, वो ऐड करो और कुछ स्किल्स के बारे में ऐड करो। अगेन, जब लोग आपको सर्च करेंगे तो ये टॉप पे आएगी चीज़। तो किस चीज़, किस नेम से आप सर्च होना चाहते हो, ना किस स्किल से आप सर्च होना चाहते हो। अच्छा, आई एम मरियम, ये इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नेम इधर आ रहा है और आपकी डिटेल्स आपके एक्सपीरियंस में आ रही हैं, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा चेंज करो। जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी इंथुजियास्ट लिखा है, तो आप इसको इस तरह रखोगे, आई साइबर सिक्योरिटी इंथुजियास्ट, पैशनेट अबाउट दिस, आई हैव दी स्किल्स। स्किल्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स में लिख लो। और करंटली आई एम, ये आपकी ठीक है, बट ये वाली दिस थिंग यू नीड टू वर्क ऑन। सर्विसेज आपने ऐड किया, लेकिन सर्विसेज की थोड़ी डिटेल्स ऐड करो। सर्विसेज में ना डिटेल्स का ऑप्शन होता है कि इसमें आप क्या ऑफर करोगी, तो वो भी आपके क्लाइंट्स को हेल्प करेगा। और आल्सो आप यू आर वर्किंग ऑन सम सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आप इसको भी यूज कर सकती हो यहाँ पे अपनी बायो पे। इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू सोशल मीडिया, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अगेन, इस पे ना आप इनको प्रॉपर टैग करो। अगर नहीं होता तो आई आई वुड से कि इसको आप रिमूव कर दो। इट्स नॉट मेकिंग अ लॉट सेंस। ये जैसे अब ये ना सारा इसको थोड़ा ना आप, जैसे इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल, ये थोड़ा प्रोफेशनलिस्ट हो जाती हूँ मैं, लेकिन इसको भी ना थोड़ा सा आपने देखना है कि आपके प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग क्या है, आपने उसको सही से ऐड किया है नहीं किया। और इसमें थोड़ा और डिटेल्स आप पॉइंट्स में डालो, इट वुड बी अ लॉट मोर बेटर इंस्टेड कि आप पैराग्राफ में डालो। और स्किल्स आपने ऐड किए हैं, कोशिश करो अपने दोस्तों से एंडोर्समेंट ले लो। इस तरह आपको होगा कि स्किल्स के अभी आपने ऐड किए हुए लेकिन कोई एंडोर्समेंट नहीं है, और इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इफ़ यू कुड गेट इंडोर्समेंट इट वुड बी बेस्ट। और हाँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा तो भी कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, तो हम इंडोर्समेंट क्या लें? तो आप अपने प्रोफेसर से भी इंडोर्समेंट ले सकते हो। तो अगर आपके प्रोफेसर्स नहीं हैं लिंक्डइन पे, तो उनको कहें कि आप लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और इंडोर्स करें हमें।
तो यस, आप वो भी कर सकते हो और वो भी बहुत अच्छा लगता है आपकी प्रोफाइल में। लेट्स से कि अगर आप मशीन लर्निंग के स्टूडेंट हो या बिजनेस के स्टूडेंट हो, और आप अपने बिजनेस के टीचर या मशीन लर्निंग के टीचर से एंडोर्समेंट ले लो, तो आपकी प्रोफाइल में जब कोई रिक्रूटर देखेगा तो पता चलेगा यस, कोई बंदा है जिसको ये सारी नॉलेज है। तो यस, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल। और ये आपकी पहले कस्टम आपने हमने सारी इसको स्ट्रक्चर किया है कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, जिस पे ये चेकलिस्ट अवेलेबल है। आई विल शेयर दिस विद यू कि क्या क्या चेकलिस्ट होती है। ये कोड बेस आईओ की प्रोफाइल की सारी ये है चेकलिस्ट। तो ये बेसिस होगी, और इस तरह आप अपना ब्रांड बिल्ड करना शुरू करते हो। लेट्स से इरम ने अपनी प्रोफाइल सेट कर ली आफ्टर दिस, देन इरम विल स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट इट। लेट्स से कि पेन टेस्टिंग के रिलेटेड आप पोस्ट करना शुरू कर दो। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि पोस्ट रेंडम नहीं करनी। अक्सर लोग, जैसे क्रम्बल आज पॉपुलर है आजकल, तो उसकी पोस्ट में रिएक्ट कर रहे हैं और वैसी पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। आप अपने स्किल की पोस्टिंग करो, आप अपने आप को मार्केट करो। ठीक है, अपने आप को मार्केट किस तरह करो? अब जैसे आप मेरी अगर प्रोफाइल देखोगे तो आई टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। आई टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांड, आई टॉक अबाउट जॉब्स ऑन लिंक्डइन, आई टॉक अबाउट रिज्यूमे, एंड सम डेज आई जस्ट टॉक शेयर फन स्टफ। तो जैसे आप रील शेयर कर रहे होते हो ना इंस्टाग्राम पे एक दूसरे से, तो इसमें भी आप अपने से रेलेवेंट लोगों को फॉलो करो और उनकी चीजें रिपोस्ट करो, और आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मुझे किस तरह की पोस्ट लिंक्डइन पे करनी है, और इससे आप रेलेवेंसी बनाओ। जैसे मैंने आपको कहा था, जब आई वाज स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, मेरे पास कुछ पोस्ट करने को नहीं होता था। आई यूज टू पोस्ट अबाउट माई सोसाइटीज वर्क, मैंने ये काम किया। और जब मैंने लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने सोसाइटीज में एक सोशल मीडिया का काम किया था, और मैंने उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया था कि आई वर्क ऑन दिस। और मुझे लिटरली अपॉर्चुनिटी आई ऑन सोशल मीडिया कि वी आर लुकिंग फॉर सोशल मीडिया पर्सन एंड आर यू इंटरेस्टेड इन इंटर्न। तो जिस चीज में आप सोसाइटीज में काम कर रहे हो, जैसे अभी मानूर ने मेरा इंट्रोडक्शन करा है, अगर मानूर लेट से ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करिए, तो उसको मार्केट करना शुरू कर दो। आप अपने ग्राफिक के डिजाइन्स पोस्ट करना शुरू कर दो कि दिस इज द प्रोजेक्ट आई वर्क ऑन, दिस इज द थिंग। बिहान्स की प्रोफाइल डालो। सो अब इसमें बहुत से आप लोगों के डिफरेंट करियर्स होंगे। मैं हर चीज़ के बारे में ब्रांडिंग का नहीं बता सकती, मैं एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप इंजीनियर हो, आप जाओ यूट्यूब पे देखो कि किस तरह लोग अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं स्पेसिफिक स्किल में, और उसमें आप पोस्टिंग या ब्रांडिंग उस तरह उसको शुरू कर दो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। अली, इफ यू कुड लाइक, अगर आप लोगों को अलाउ कर दें अपने आप को अनम्यूट करना और उनके जो सवाल हों वो शेयर कर दें, तो इट वुड बी बेस्ट। हाँ ओके, मैं करता हूँ। आई थिंक आई हैव डिलीवर्ड एवरीथिंग दैट आई कुड। अगर फिर भी इसके अलावा आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, आप मुझे बता देना। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा, हाउ मच इम्पैक्ट डज इन्वेस्टिंग इन प्रीमियम मेक, इज इट वर्थ इट? अच्छा, प्रीमियम इतना ज़्यादा वर्थ इट है भी या नहीं भी? देखें, अब अक्सर लोग जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि 1 महीने का प्रीमियम फ्री मिलता है, आप उसको यूज़ कर लो। और उससे ये होता है कि आप मैसेजेस जब भेज रहे होते हैं, उसमें आपके पास इन मेल ज़्यादा होते हैं मैसेजेस सेंड करने में। जैसे अक्सर माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड हंट्स फॉर क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, तो मैंने उसको ये रिकमेंड किया था कि अब हम क्या करते हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। वी गो टू फाइवर एंड अपवर्क। हम वहाँ पे देखते हैं कि कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके नेम्स को सर्च करते हैं और उनको सर्च करते हैं कि लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे वी गेट ट्राई टू गेट द क्लाइंट्स। तो उनको जब हमने मैसेजेस भेजने होते हैं, तो मैसेजेस का अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, तो लिमिटेड मैसेजेस होते हैं, करेक्टर्स लिमिटेड होते हैं। तो हमें मोर करेक्टर्स चाहिए होते हैं, तो दैट्स वाई वी यूज प्रीमियम। तो प्रीमियम यूज करने के भी रीजन होते हैं। अगर आप करंटली सिर्फ अपने बारे में पोस्ट कर रहे हो और अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, तो आपको प्रीमियम नहीं चाहिए। और अगर आप किसी रिक्रूटर से कनेक्ट कर रहे हो, तो 200 कैरेक्टर आर इनफ। ठीक है, आप उसमें जब आप लेट से, मैं अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा प्रोफाइल एग्जाम, यहाँ से किसी को उठा लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। चेयरमैन नेट सोल को उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ पे नोट नोट डालना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप मैसेज में, बिकॉज अगर मैं इनको ऐसे भेज दूंगी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी। अक्सर लोग कर लेते हैं, अक्सर नहीं। तो मुझे रेलेवेंट मैसेज कुछ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैसेज की रेलेवेंसी की भी चेक लिस्ट है, आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्टर्स आ रहे होते हैं। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो 200 कैरेक्टर्स होते हैं, और अगर आपके पास प्रीमियम है तो 300 होते हैं। और आप यहाँ पे एक रेलेवेंट मैसेज ऐड कर सकते हो। और उसके
बाद एक होती है इन मेल्स। लेट्स से कि मैं इनको मैसेज करूँ तो ये भी लिमिटेड, डायरेक्ट मैसेज करूँ तो प्रीमियम ने ये आपको ज़्यादा इन मेल्स मिल जाती हैं मैसेज करने वाली, और विदाउट प्रीमियम आई गेस लिमिटेड होती हैं। तो यही कुछ फ़ायदे हैं प्रीमियम के। इसके अलावा इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता किसी की प्रीमियम प्रोफाइल हो या ना हो। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट आउट किया था आई डू नॉट हैव प्रीमियम, देन माइक्रोसॉफ्ट केम और वो आपको प्रीमियम दे देते होते हैं विद सेशंस एंड एवरीथिंग, तो तब से मेरे पास प्रीमियम है। अदर देन दैट इट्स नॉट वर्थ इट। जी मतलब वो पिन काजिम, नहीं देते। काजिम, हाँ वो भी नहीं देते, मैंने आई हर्ड अबाउट इट। काजिम आप अपना सवाल पूछ सकते हो। क्वेश्चन है कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए तो पासपोर्ट आई थिंक रिक्वायर्ड है और यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन अगर ये ना हम्म, हो तो मतलब वर्थ इट है ये या नहीं, कैसे कर सकते हैं इसको? नहीं आई डोंट थिंक सो। मेरी अपनी प्रोफाइल, वही बात है, पासपोर्ट वाला इशू है, तो वो नहीं वेरीफाई और वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई डोंट थिंक सो। अक्सर लोगों की वेरीफाई हो जाती है ऑन द ईमेल। आई थिंक ये लिंक्डइन खुद इम्प्रूव करेगा कुछ अरसे में ये, बिकॉज हर किसी के पास एनएफसी पासपोर्ट नहीं है। मैंने भी उनको ईमेल लिखी थी, आप लोग भी ईमेल लिख दें, बट डजेंट मैटर एट ऑल। थैंक यू वेरी जी मच। अब्बास, नो वरीज। जी अब्बास यू कैन गो अहेड। अस्सलामुअलैकुम। मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन जो था खैर वो तो आप आंसर हो चुका था, बट एक्चुअली ऐसा था कि मैंने ना अपना लिंक्डइन का यूआरएल शेयर किया हुआ था ना ऑलरेडी। अगर आप देखें तो सेकंड पे हुआ हुआ था। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट इफ़ यू कुड गो थ्रू माय प्रोफाइल फॉर वंस। जस्ट गिव मी अ मिनट अब्बास, लेट मी क्यू एन ए में चेक। आप चेक कीजिए, बिल्कुल सेकंड पे जो है ना मैंने अपना शेयर किया हुआ है। इज दिस द वन, अब्बास आई खान? यस यस मैम। ठीक है, थैंक यू अब्बास। अच्छा अब्बास, अगेन कलर्स, अब आपके देखें आपके कलर्स प्रोफेशनल वाले नहीं है, ठीक है। आपके जो आपने पीछे बैनर लगाया हुआ है, अगेन इट इट शोज योर नेम, और अगेन योर पिक्चर इज ऑलरेडी देयर। तो आपको यू नीड टू वर्क ऑन दिस। इस पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज गुड कि आपने ऐड किया हुआ है अपने, आपका अबाउट सही है, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ आपने ऐड किया, ओपन टू लोकल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, आप इसको ओपन टू वर्क वाली चीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज लिंक्डइन का जो ओपन टू वर्क है, इट एक्चुअली हेल्प्स, इट वर्क समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। तो आप इसको वहाँ पे ऐड करें। और आपने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है विच इज़ गुड। हम अभी पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कर रहे थे, हम नॉट वर्किंग ऑन दैट, बट इट्स गुड, आपके ये वाली पार्ट अप्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा और बताएं, ठीक है। आप सर्टिफाइड वेब फुल स्टैक डेवलपर बने, इसके पहले क्या थे, थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। आप इंथुजियस्ट हैं इसके बारे में, उसकी क्या डिटेलिंग है, फिर ये फिर इसके बारे में बताएं कि आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस, जस्ट लाइक मोमल। आप उनके प्रोफाइल देखें तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल में काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं, जो अगर कोई बंदा जाएगा तो कहेगा वाओ इनको ये भी आता है। तो उस तरह अगर आप करें ना सेट, तो जैसे स्टार्ट विद अ हुक लाइन। हुक लाइन एक चीज़ होती है कि अभी लोगों का अटेंशन स्पैम है ना, इट्स जीरो। तो उनको कोई चीज़ एक्साइटिंग लगती है ना, लेट्स से कि आप अपने अबाउट में स्टार्टिंग में अपने बारे में कोई बहुत अच्छी हुक लाइन डाल दें, ठीक है, कि आई हैव वर्कड ऑन दिस समथिंग दैट्स यू थिंक इज अमेजिंग फॉर यू, तो वो पूरा अबाउट आपका रीड करेगा। बट इट्स गुड कि आपने इसको कॉन्साइज किया है, लेकिन इसके स्टार्ट में कुछ होना चाहिए। ये चीज़ ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल में होगी, तो मैटर नहीं करता कि आप करंटली परस्यूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट कॉमसेट्स, बट फॉर टाइम बीइंग यू कैन ऐड, बट लेटर आप जब बिल्कुल प्रोफेशनल की साइड पे जा रहे हैं ना, अगर आप यू आर नॉट स्टडिंग, तो फिर ये चीज़ इतना मैटर नहीं करेगी। जस्ट आपको ये चीज़ आपने सही डाली हुई है, ठीक है। अच्छा अब ना थोड़ा सा एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि हम चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसको यूज़ करना छोड़ दें, बट ये जो वर्ड्स होते हैं ना, लेवरेज, स्पेयर हेडेड, कुछ इस तरह का वर्ड होता है, दीज आर एआई वर्ड्स, ठीक है। कोई आपकी प्रोफाइल मैं देख के बता सकती हूँ कि टेक्स्ट आपने थोड़ा सा हेल्प ली है एआई से, तो उसमें प्रॉम्प्टिंग होती है कि चेक लाइक कन्वर्ट माई मैसेज इनटू इजी इंग्लिश या समथिंग लाइक दैट, तो आप वो यूज़ करें, ठीक है। एआई बज़ वर्ड्स बिल्कुल यूज़ ना करें। और जैसे आप ना फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो मूव अराउंड फुल स्टैक डेवलपर एज मच एज यू कैन, ठीक है। और
ये वाली चीज़ देखें, आप 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ पे भी यूज़ किया, आपने यहाँ पे भी यूज़ किया। तो रिपीटेशन इतना वो नहीं करती, आपकी प्रोफाइल में रिपीटेशन आ रही है। तो आप यू हैव टू चूज वन थिंग। यहाँ पे यूज़ करना है तो किस तरह यूज़ करना है। लेट्स से कि आप कह रहे हो कि आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज लोकली एंड ग्लोबली। हाउ आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, वाई दे शुड हायर यू। और एक चीज़ ना, नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। लेट्स से आपने सर्टिफाइड वेब स्टैक फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो आप क्या लिखें, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फुल स्टैक डेवलपर, आई हैव वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट्स के नेम्स होते हैं, आप प्रोजेक्ट्स अपने डालना शुरू करते हैं, लेकिन नंबर्स डालें, स्किल्स की नंबरिंग करें, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ये ठीक है माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, बट इसको आपको थोड़ा सा रिलेट करना है अपने, और इसमें और डिटेलिंग होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट्स का एक अलहदा से पोर्शन है लिंक्डइन पे, तो मैं इतना इंकरेज नहीं करूँगी अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट आप उसको अपने अबाउट में ना ऐड करें। ठीक है, आई थिंक रेस्ट इज़ फाइन। अपने यहाँ पे स्किल्स ज़्यादा कर दें। ये देखें, फुल स्टैक डेवलपमेंट डिटेल डालें, क्या किया फुल स्टैक डेवलपमेंट में, क्या क्या सब डिटेल्स हैं। ये भी आपको थोड़ी, जैसे ये आपने डिटेल डाली है ना, इसमें भी ये कम है। आप इसमें ना पॉइंट्स लिखें कि 1 महीने में आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया, अगर प्रोजेक्ट में काम नहीं किया तो किस किस स्किल से आपको को आइडिया हुआ है किस किस स्किल का। तो आई थिंक रेस्ट इज़ फाइन। आपने अपने प्रोफाइल पे अच्छा काम किया हुआ है। इंडोर्समेंट्स, और ये भी आपने इंडोर्समेंट्स ले लें अपने दोस्तों से जिनको आप जानते हैं, और आपको रिकमेंडेशन भी मिली हुई है, विच इज़ गुड। आई थिंक रेस्ट इज़ फाइन। और ये आपने ऐड किया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। लेट्स से कि आपने कोई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, आपने कोई चीज़ कंप्लीट की है, तो वो भी आप अपने अबाउट में अपने फीचर पोस्ट पे डाल सकते हो। और आई थिंक दैट्स फाइन। जस्ट जो मेन थिंग है ना, आपको वर्क करना है, वो इस चीज़ पे वर्क करना है, कलर्स ऑफ योर प्रोफाइल पे। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. Thank you so much. It was very helpful. नो वरीज एट ऑल। एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल? I have one more question. जी जी। I am a student, मतलब अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का। तो अभी हम्म मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है था ना किसी भी हम्म फील्ड में। हम्म। तो हाउ कैन आई गेट दिस? आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो अपनी यूनिवर्सिटी में? जनरली वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आई एम हम्म वॉलंटियर, लाइक स्किल्स फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वो मैंने हम्म सजेशन इसमें इंटर्नशिप हम्म मैंने की थी, वो की हुई है, लेकिन और और कैसे सर्च करें इसके बारे में? हम्म। अच्छा, इसमें ना, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जैसे बताया कि आप थोड़ा सोसाइटीज का ऐड कर दो, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके स्किल्स, अब एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट इतने ज़्यादा स्किल्स आपने अपने एक्सपीरियंस में ऐड किया ही हो। आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का डालो, कीप योर प्रोफाइल सिंपल, जो जो डिटेल्स हैं अभी आपके पास आप वो ऐड करो। एंड विद टाइम जब आपके पास डिटेल्स आना शुरू हो जाएं और चीज़ें आना शुरू कर हो जाएं, ऐड करो। जैसे आप यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट होता है, लैब प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उसके बारे में डालो कि आज हमारी लैब प्रोजेक्ट की होती है, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन थी और मैंने उसमें ये सीखा, ये स्किल्स सीखे। तो स्टार्ट विद दैट। और बिल्कुल एक्सपीरियंस की तरफ ना भागो। अक्सर लोगों को मैं देख रही होती हूँ कि सोसाइटीज़ में काम करते हैं, कोई सोसाइटी का पेज बना देते हैं और लिख देते हैं कि आई वॉज अ फाउंडर ऑफ दिस। ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं। आप चैप्टर लीड बनते हो, फाउंडर यस आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो, बट चैप्टर लीड डालें। और ये बहुत फाउंडर एंड सीईओ वाला सिर्फ ये ना बहुत बज़वर्ड्स हुए हुए हैं, तो इसको अवॉइड करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किल्स में वो, मतलब आपके एक्सपीरियंस में बहुत ही एक्स्ट्रा नेम लिखे हों। रेलेवेंट होना चाहिए, ये ऑथेंटिक होना चाहिए। जी जी। कहना चाह रहा था कि लिंक्डइन के थ्रू हम इंटर्नशिप्स या एक्सपीरियंस मतलब कैसे गेन कर सकते हैं? कोई स्पेशल कीवर्ड्स एंटर करने पड़ेंगे या हम्म। अच्छा देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हो ना, क्या फील्ड है, क्या डिग्री है आपकी? बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी पे थोड़ी बात करते हैं कि ये एक प्रॉपर फील्ड, इसकी डिटेलिंग पे कि अब आपने स्टार्ट किया तो आप कहोगे कि अब मैं देख रही होती हूँ बायोटेक्नोलॉजी के लोग और इस तरह के दूसरी दूसरी फील्ड्स पे आ जाते हैं। तो पहले तो आपने डिसाइड करना है आपने बायोटेक्नोलॉजी में ही इंटर्नशिप ढूंढनी है, बिकॉज आई नो सम पीपल जो उसमें काम कर रहे हैं। और इसकी ना कुछ कंपनी होती है, जैसे जेलेक्सा है, जेलेक्सा इज अ कंपनी इन एनएसटीपी।
जो कि बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रही है। तो सबसे पहले तो आप शॉर्ट लिस्ट कर दो कि कौन सी कंपनीज आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, आपके एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। आपने उनके पेज फॉलो करने हैं ऑन लिंक्डइन। फिर देखना है कि किन चीज़ों पे काम कर रही है। फिर उनके वहाँ पे जिन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ नई हायरिंग करते हैं तो उसकी डिटेल्स आ जाती है। लेट्स से मैं आपको अगर दिखाऊं, अभी मेरे पास ना यहाँ पे मेरा इस्तांबुल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, बट जस्ट एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी से जस्ट कीवर्ड से सर्च करती हूँ मैं। अब यहाँ पे इस तरह के डिटेल आ गया, क्लिनिकल रिसर्च, आई डोंट नो ये क्या क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप देखो बायोटेक्नोलॉजी में आता क्या क्या है, किस किस चीज़ पे आप काम कर सकते हो, किस किस चीज़ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर कीवर्ड से सर्च करो। फिर अपनी लोकेशन जाके, लेट्स से अगर आप इस्लामाबाद के हो, इस्लामाबाद डालो, तो आपको पता चल जाएगा इस्लामाबाद में ये जॉब अवेलेबल है। जी जी बोलो, आपका कुछ सवाल। मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद से ही होगा। जी जी ठीक है। तो फिर देखो ये काम क्या करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो एग्जेक्टिव है, बहुत हाई लेवल पोजीशन है। आपने देखना है कि इंटर्न, बायोटेक्नोलॉजी इंटर्न। और दिस इज फॉर एवरीवन। अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो आपने देखना है। देखें, मुझे उस तरह की जॉब्स नहीं आ रही इधर। ठीक है, आपको अब बायो टेक्नोलॉजी इंटर शायद टर्म एग्जिस्ट ना करती हो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सब टर्म्स होंगी जो आपने करनी है कि कौन सी इंटर्नशिप्स आ रही होती है। जैसे एयर यूनिवर्सिटी के पास एक हॉस्पिटल है जो बायोटेक्नोलॉजी की इंटर्नशिप्स करवाता है। तो ये सारा गूगल पे आप इसको सर्च करके, और एक और चीज़ तरीका होता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड लोगों को सर्च करो, उनको मैसेज करो कि यस आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, या फ्रेश ग्रेजुएट नहीं, आई एम स्टार्टिंग आउट इन बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे काफ़ी, मैं बार बार यूट्यूब और गूगल का कह रही हूँ बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन इज देयर, यू जस्ट हैव टू सर्च एंड लुक फॉर इट। तो आपने उनको मैसेज करो, एक बंदा दो बंदा नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा। और उनसे पूछो कि कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं, बिकॉज आई डोंट नो किस तरह की जॉब अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल योर रिसर्च। आप जितना उस पर डीप जाओगे, जितना रिसर्च करोगे, यू विल गेट टू नो। तो आई थिंक दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। और अगेन इट्स में रिसर्च है सारी। आई थिंक सैयद सिकंदर सईद, आप यू कैन गो अहेड। Assalamualaikum. Thank you so वालेकुम very सलाम। much, Ma'am Alisha, for giving us such insightful and knowledgeable session. I have recently sent you a connection request because ओके। there isn't any option for me to po- post a link of my account in Q&A and chat. Can you please go through that? So I wanted to go through just three profiles. Let me just go through yours. Up, Sayyid Sikandar Saeed. Well, this is the last profile I'm reviewing. I'm not थोड़ा actually ये है कि time limited है. I have to answer a few Okay. questions. ठीक है? Yeah, thank you so हाँ, very much. Thank you, ma'am. no worries. अच्छा, अगेन सर, आपका जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल पिक्चर आपने डाली हुई तो प्रोफेशनल है, लेकिन उसका वाइट बैकग्राउंड, तो ये इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, आप इसको प्रॉपर इसको सेट करें। और इसके पिक्सल्स का भी इशू है। तो और साथ सिकंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये तो चीज़ ठीक है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बट सिकंदर आपका नेम ऑलरेडी, बाय द वे योर नेम इज़ रियली गुड, लेकिन आपका नेम ऑलरेडी आया हुआ है ऑन द हेयर। यू डोंट नीड टू ऐड दैट। ठीक है, फिर आपका जो आना चाहिए स्कॉलर, यहाँ पे ना आपकी अगेन मैंने आपको बताया एक हेडलाइन आनी चाहिए। ठीक है, आप यू कैन नॉट जस्ट गो एंड पोस्ट अबाउट एवरीथिंग। एक हेड, जैसे आपने ये इंथुजियास्ट आप बहुत सी चीज़ों के होते हो, लेकिन आपने एक, किस चीज़ से आप अपने आप को सेल करना चाहते हो, किस चीज़ की आप अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, दैट यू हैव टू ऐड हियर। पहले वो ऐड करें और फिर आप डाल दें कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और जो भी आपने और डिटेल्स डालनी है। ये दिस इज गुड, ड्यूल गोल्ड मेडलिस्ट, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन आई थिंक नीचे ऐड होगी। ठीक है, और यस, ये चीज़ इट लुक्स गुड हेयर। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑल्सो आपको ना बायो में इमोजीज नहीं डालने होते। दिस इज मतलब ना आपकी बायो बहुत, जैसे मैंने कहा, आपकी डिटेलिंग एक आ रही होती है, तो बिल्कुल कॉन्साइज रहना है। तो इमोजीज यहाँ से रिमूव कर दें, बिकॉज प्रोफेशनल प्रोफाइल्स में देखिए, आप प्रोफेशनल मैसेज भेजते हो ना, तो उसमें भी आप इमोजीज ऐड नहीं करते। तो दिस इज योर प्रोफेशनल प्रोफाइल।
और मुझे लगता है आपने ये लिखवाया चैट जीपीटी से, तो उसमें वो आपको मोजिस देता है, आपने मोजिस यहाँ से निकालने हैं और इसको बहुत रेलेवेंट करना है। जैसे माई एक्सपर्टीज इन, इसको इस तरह की जरूरत नहीं थी, आपने सिंपल लिखना है माई एक्सपर्टीज, और ये भी इतनी डिटेल में नहीं, कॉन्साइज फ्यू वर्ड्स, व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, 1 2 3 4 5, ठीक है। और वाई मी, ये भी आपको इधर जरूरत नहीं थी। हाँ, लाइक अगर आप करने थे वाई यू शुड हायर मी, उसकी डिटेल्स आप ऐड कर दें, बट इतना डिटेलिंग में आप मतलब इस तरह आप इसको ना, ये बहुत ज़्यादा ये जा रही है। और माई विजन, ठीक है, आप विजन अपना ऐड कर सकते हो, बट हाँ ये मतलब ठीक भी है, लेकिन इसको भी मैं आपको कहूँगी लास्ट में कुछ पॉइंट्स में आप ऐड करें, इतना ज़्यादा ऐड ना करें, ठीक है। योर चेंज कैटलिस्ट, ये आप ना ईमेल की तरह इसको लिख रहे हैं, अपने अबाउट को आपको ईमेल की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। अबाउट सिर्फ कॉन्साइज आपके बारे में और आपकी टॉप स्किल्स के बारे में, जो आपने टॉप स्किल्स के बारे में ऐड किया है, और अपने कुछ फीचर पोस्ट डाल दें। और थोड़ा सा देखें कि अब देखें, चैट जीपीटी वाला अगर आप कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखते हो ना, तो वो इतना टॉप रैंक में नहीं जाता, आपके दोस्त आपके कनेक्शन उसमें करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ढूंढना चाहे, और जैसे अब मैं अगर आपको सर्च करूँ तो क्लाइमेट रिलेटेड, जैसे क्लाइमेट रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स मैं देख रही होती हूँ, वो तो आ रहा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं ये रैंक करेगा। और बहुत ज़्यादा मैं भी अक्सर चैट जीपीटी से लिखवाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा अगर होंगे ना इमोजीज, इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड, पता चल जाएगा कि इट्स एआई जनरेटेड कंटेंट। आपने अपना ये सही डाला हुआ है, एम्बेसडर। अगर आप कहीं करंट जॉब कर रहे हो ना, तो वो आप ऐड करो जॉब पे। और उसके अलावा जैसे ये स्कॉलर्स, ये इट्स इट्स आई थिंक इट्स अनपेड, इट्स अ वॉलंटियर थिंग, तो इसको आप ऐड करो अपने वॉलंटियर रोल में। और उसमें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड की हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करनी, ठीक है। आपने थोड़ी सी अब ये ना पूरी आपने लिंक्डइन पोस्ट डाली हुई है, इसकी डिटेल में आपने कॉन्साइज डिटेल रखनी है, थोड़ा सा बताना है कि व्हाट एस्पायर इंस्टीट्यूट इज, और फिर उसकी थोड़ी सी प्रोग्राम डिटेल्स, राइट। सो दैट्स ऑल यू कैन ऐड। और इसमें भी मैं आपको कहूंगी कि पूरा लिंक्डइन पोस्ट नहीं डालनी, ठीक है, कि पूरी बहुत ज़्यादा डिटेल्स। जस्ट पहले बताना है कि OMLAS है क्या, और दिस इज समथिंग एंड आई हैव वर्कड ऑन दिस। Let me show you an example of my friend. I recently helped him improve his profile, so I think it would be a good example. ये प्रोफाइल, ठीक है, तो ही वर्क्स ऑन ग्राफिक डिजाइन, और ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड लोग हैं तो अगर वो देख रहे हैं, तो ये आपने सिंपल कीवर्ड्स डाले हुए हैं कि आई एम ग्रोथ डिजाइनर इज आल्सो अ टर्म, और मोबाइल एंड ऐप वेब एप्स हेल्पिंग स्टार्टअप्स एंड कंपनी टू ड्राइव डिजिटल ग्रोथ। वेरी कॉन्साइज, जो भी इनकी प्रोफाइल में आएगा इनको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और अबाउट में बिल्कुल शॉर्ट डिटेल्स, ठीक है, जो इनके बारे में डिटेल्स थी, इनको मैंने कहा कि आपने पहले अपने बारे में बताना है, नाइस टू मीट यू, ठीक है, फिर बताना है कि आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, एंड थोड़ा सा अपने बारे में बता के, और ये उनके गोल्स। और इनके अबाउट में आप सिंपली सब आपको समझ आ जाएगी। और टॉप स्केल सर्विसेज फीचर पोस्ट में ये अपनी पोस्टिंग करते हैं, वो एडिड है, ठीक है। और ये ग्राफिक्स रिलेटेड पोस्ट करते हैं, इफ यू कैन वांट टू सी टू हिज वर्क यू कैन। और जैसे अब ये आई थिंक ही एडिट दिस, बट ये मैंने इनको हेल्प किया था, तो पहले ही यूज टू वर्क एट वायरो, तो वायरो के बारे में थोड़ा सा बताया, और फिर कहा टू डू दिस, दीज आर द स्किल्स आई एम वर्किंग ऑन। और आई थिंक दिस इज ऑल। और इनकी प्रोफाइल काफ़ी पॉलिश की थी हमने बैठ के, तो आप इनकी भी अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप इनकी एग्जांपल देख सकते हैं, और इस तरह आप अपनी एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कोई भी आप नेक्स्ट, काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, कोई भी आप नेक्स्ट बोल सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस अच्छा मैं कोई भी, जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अब्बास खान का क्लास फेलो ही हूँ, तो हम दोनों की स्किल्स वगैरह भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, वेब डेवलपर है हम दोनों। आपने उसकी प्रोफाइल रिव्यू की है। मेरे और उसमें डिफरेंस ये है कि मैं वर्चुअल असिस्टेंसी भी साथ साथ कर रहा था पिछले 3 साल से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनाऊं कि मैं एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज एन अमेजोन वीए दोनों की अपॉर्चुनिटीज आए, तो मुझे जो अच्छी लगे मैं उसके ऊपर ऑप्ट कर जाऊं। तो इसके लिहाज से प्रोफाइल कैसे अपडेट कर सकता हूँ मैं? हम्म अच्छा, उसके लिए सिंपल ही है, जैसे अब
मैं दो काम करती हूँ, मैं पार्टनरशिप्स पे काम करती हूँ और मैं ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट में काम करती हूँ, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट फील्ड्स। मैंने सिंपल जहाँ पे मैं पार्टनरशिप्स पे काम कर रही हूँ उसका लेट्स से मैं अगर यहाँ पे काम ना कर रही होती तो मैं लिखती यहाँ पे पार्टनरशिप्स एंड ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट। तो आपने जैसे आपने कहा अगर आपने वेब इंजीनियर के बारे में लिखना है कि वेब इंजीनियर एंड अमेजोन वीए असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, सॉरी, आप इस तरह अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो और डिटेल डाल सकते हो अबाउट में, अबाउट इसी काम के लिए, ठीक है, कि आई हैव स्किल्स इन दीज एक्सपर्टीज एंड अदर देन दैट आई वर्क एज अ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, और उसकी डिटेल्स डाल दो। तो यू कैन ऐड टू डिटेल्स, ठीक है, अबाउट को थोड़ा डिवीजन करके पहले अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के बारे में बताओ और फिर अपने वर्चुअल असिस्टेंट, और जिसको आप ज़्यादा लेट्स से भाव देना चाहते हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा बात करना चाहते हो, उसको आप टॉप पे रखो। I think I answered your question. Okay, ma'am. Thank you so much. No worries. Uh, किसी फीमेल ने Assalamu क्वेश्चन alaikum. किया? वालेकुम सलाम। May I ask? जी जी। Okay. I'm Samaya Batul, and first of all, thank you so much for such an insightful session. Okay, मेरे दो तीन questions हैं. I have I have like master's degree from Kazazm University, and I'm from the National Sciences background. Currently, I'm working to like on three different things. First of all, to have some scholarships, like I'm looking for certain professors. Number two is that I am like tutoring the students, so I am looking for some international students. And third is like I'm working in some education side remotely. And third is I have been a content writer as well, but right now I'm not working as a content writer. Fourth is that I am working on my public speaking skills. Like this is my side project that I'm working on my public speaking skills, and I want to utilize it in order to enhance my network, in order to build my personal brand, so that I can get some trainings and like that stuff. So मैं अपने LinkedIn प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करूँ? मुझे दो LinkedIn प्रोफाइल्स बनानी चाहिए. One for the professors and research, what I did in my masters, like उस साइट पे करनी चाहिए, या मुझे एक ही प्रोफाइल में सब कुछ करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन इज़ कि मैं अपनी बायो में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करूँ जो मेरे करंट काम चल रहे हैं, जैसे कि मैं अगर साइंस फ्यूज़ के साथ अटैच हूँ, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो वो मेरी बायो में होना चाहिए, या फिर मेरी बायो में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ हो जो कि मैं हंट कर रही हूँ, लाइक जिस चीज़ के लिए मैं देख रही हूँ। अच्छा, इसमें मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप सबसे ज़्यादा क्या चाहती हो इस टाइम इन सारी चीज़ों में? प्रोफेसर्स को रीच आउट करना, राइट? प्रोफेसर्स को रीच आउट करना और जॉब रोल। जॉब रोल किस रिलेटेड? लाइक इन सम एजुकेशन सेक्टर सॉर्ट ऑफ लाइक रिमोट, मुझे अगर कोई रोल मिल जाता है, फॉर एग्जांपल कुछ रोल्स रिक्वायर्ड होते हैं कि एआई ट्यूटर चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि हमें जनरेटिव एआई पे एजुकेशन में हम कैसे इसको इंटरमिंगल कर सकते हैं, मतलब इस तरह के जॉब रोल्स भी आते हैं, सो आई एम लुकिंग फॉर दैट वन आल्सो। अच्छा, और आपकी रिसर्च, आप किस तरह के प्रोफेसर्स को ढूंढ रही हो? कि रिसर्च किस चीज़ में? मशीन लर्निंग और एआई और केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से हूँ, तो इनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन केमिस्ट्री, सो वो प्रोफेसर्स जो इस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैं उनको ढूँढ रही हूँ। तो देखो, आप ना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से स्टार्ट किस तरह कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन, और इसलिए आपको ना डिफाइन करना होता है कि व्हाट आर माय टॉप 2 और टॉप 1 प्रायोरिटी। तो यहाँ पे आप अब आई डोंट नो कि केमिस्ट्री के थ्रू जो एआई पे काम करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, आई गेस नोबेल प्राइज इस दफ़ा फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एआई वर्कर को मिला था। तो आप यहाँ पे लिखो कि एआई रिसर्चर या एआई स्कॉलर, जो भी आपकी एक फील्ड है, उसको यहाँ पे करो। केमिस्ट्री एआई रिसर्चर, जो भी आपने ना टैग लाइन पे काम करना है, आपने खुद सर्च करनी है, बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली राइट नाउ। और फिर आप एक लेट्स से कि ये आप ऐड करके डाल दो कि एआई ट्यूटर, दीज आर टू स्किल्स दैट, एक आप मतलब जॉब्स इस तरह की ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल सेट होगी। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अगर आप वैसी जॉब्स और ढूंढ नहीं रही, तो उसको आपको अपनी बायो में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आ गया कि एआई रिसर्चर, और सेकंड आ गया एआई ट्यूटर। उसको थोड़ा और अच्छे से करके लिखना, देखना कि कौन सा कीवर्ड चल जाता है। इस मतलब आपने लिंक्डइन पे एआई ट्यूटर के नाम से सर्च करना है और देखना है कि उनकी प्रोफाइल कैसे है।
और थर्ड चीज़ लिख देनी है, लेकिन वो बिल्कुल एआई ट्यूटर से आपने सोशल मीडिया की तरफ नहीं आना। और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी आप लिख सकते हो, बट दैट इज समथिंग यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज पब्लिक स्पीकिंग में ढूंढ रही हो तब वो इधर आना चाहिए। अदरवाइज आप कोई अगर चीज़ सीख रही हो उसके बारे में पोस्टिंग शुरू कर दो, ठीक है। जैसे कि भी आप बता रही थी, यहाँ पे आपके बारे में आ जाएगा आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में कि आप किसी जगह सोशल मीडिया या किसी चीज़ की जॉब कर रही हो, और इधर आपके अबाउट में डिटेल्स आ जानी चाहिए कि आई एम अ एआई रिसर्चर, आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर, आई कैन टीच चिल्ड्रन अबाउट एआई। थोड़ा सा उसका थोड़ा अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऐड कर दें, अपनी टीचर पोस्ट में अपना रिज्यूमे ऐड कर दें, और 2 लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाए। बिकॉज आप एक हो तो आपकी 2 लिंक्डइन प्रोफाइल्स की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी रिज्यूमे 2 बना सकती हो। वाइल रीचिंग आउट टू प्रोफेसर, अगर आप उनको कुछ पोर्टफोलियो रिज्यूमे दे रही हो तो आप वो भेज दो। और वाइल रीचिंग आउट टू पीपल फॉर एआई ट्यूटिंग रिलेटेड जॉब तो आप उनको वो वाला रिज्यूमे भेजो। तो रिज्यूमे डिफरेंट होती है, प्रोफाइल एक ही होती है। और ओब्वियसली इसमें मुझे आपकी फील्ड रिलेटेड इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बायो नहीं बता सकती, बट यू कैन ऑल्सो डू इट इन 3 वर्ड्स, मतलब 3 उसके करके आप कर सकते हैं। So I think this is your answer. और That's all I need. एक और बात मैंने Yeah. पूछनी है कि मैं ऐसा भी कर जी जी। सकती हूँ कि मैं एक पेज बना लूँ जहाँ पे मैं अपनी ये चीज़ें पेज करूँ और उसको मैं अपने अकाउंट से लिंक कर दूँ। अपने अकाउंट पे मैं ज़्यादा इन चीज़ों की पोस्टिंग ना करूँ। लाइक मैं अपने अकाउंट को बहुत, मैं चाहती हूँ मेरा अकाउंट बहुत ज़्यादा स्टफ़ी और वो ना लगे कि मतलब ये मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स जो होता है ना, वो वाला चीज़ ना आउटलुक वो ना दे। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं एक पेज बना लूँ और उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दूँ? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप 3-4 पेज बना लेंगी तो इतने ज़्यादा काम के साथ वो कैसे मैनेज करेंगी। लेट्स से कि आप देखें, लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको नीश चूज करनी है, आप 2 भी कर सकते हो। आप एआई अपनी जो रिसर्च करो उसके बारे में भी ऐड करो, पर्सनल डेवलपमेंट में के बारे में आप जो डाल रहे हो वो भी ऐड कर सकते हो। पेज आप तब, जैसे एआई ट्यूटिंग ये सर्विस है, आप इसका पेज बना सकते हो। अपने नाम का कोई अच्छा सा पेज बनाओ, और उसको जब आप पोस्ट करोगे ना तो सारे आपके पेज पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, तो यू स्टिल हैव टू पोस्ट अबाउट योर पेज ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल सो दैट पीपल कैन रीच आउट देयर, ठीक है। पेज बना लो, उसके बारे में ऐड करना शुरू कर दो, बट यू हैव टू स्टिल पोस्ट हियर। और उसमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड का कोई इशू नहीं है, बिकॉज मैच कर रही हैं दोनों चीज़ें। आप एआई स्कॉलर अपॉर्चुनिटीज के बारे में ढूंढ रही हो और एआई ट्यूटर हो, तो दोनों चीज़ें मैच करती हैं। और हाँ, पब्लिक स्पीकिंग वाली चीज़ अगर आप इतना ऐड ना करो और खुद पर्सनली उस पर काम करो तो फिट है, लेकिन कभी कभार उसके बारे में आप पोस्ट कर सकती हो। जी अब्बास, आई थैंक थिंक यू आई सो आई विल, मच। नो वरीज एट ऑल। आई विल बी टेकिंग जस्ट 2 more क्वेश्चंस। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, और आपका जो भी क्वेश्चन हुए आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, तो अली विल शेयर विद मी। जी अब्बास, यू कैन गो अहेड। मैम यस, मेरा में 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 ये था कि हम जब अपने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस सेशन आपने कहा था ना कि क्या होता है कि वो हम अप्लाई वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इजी अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होता है। तो आपने उसके बारे में कहा था कि इसको हम बात करेंगे, बट हम बाद में करेंगे। और इसमें मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब भी इजी अप्लाई से अप्लाई किया तो इट डिडंट वर्क आउट। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरे उस पे आपने रिव्यू में हाईलाइट किया ना कि मतलब इट सीम्स दैट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम जीपीटी। तो एग्जैक्टली मैंने जीपीटी से लिखवाया था वो कंटेंट। अब मेरी थिंकिंग ये थी कि अगर मैं जीपीटी को प्रॉम्प्ट इस तरह का देता हूँ कि एनालाइज द एल्गोरिथम्स ऑफ लिंक्डइन, और मुझे फलां गोल के लिए मुझे एक कैप्शन निकाल के दो जो कि फलां फलां एम्स को अचीव करे, फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट बढ़ाए, अकाउंट रीच बढ़ाए, एक्स वाई जी। तो इस काम के लिए जीपीटी का इस तरह जो कंटेंट मुझे निकाल के देते हैं, क्या वो ठीक होता है या नहीं होता? ये 2 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, आपका एक क्वेश्चन है कि इजी अप्लाई वर्क करता है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है कि जीपीटी आपको जो अकाउंट बूस्टिंग है उसमें हेल्प करता है या नहीं, राइट? एग्जैक्टली मैम, ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, इजी अप्लाई लिंक्डइन का काम नहीं करता बिकॉज देखें, अगर मैं अपने इजी अप्लाई, मैंने भी बड़े इजी अप्लाई को यूज़ किया, ये बहुत रेयर है कि वर्क करे। वर्क करता है, लेकिन अक्सर आपको रिजेक्शन इधर से आ रही होती हैं, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऑलवेज, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अच्छा, जब आप इजी अप्लाई को यूज़ करते हो तो आप उसमें अपनी रिज्यूमे डालते हो। रिज्यूमे आपकी आपकी सीवी होगी या रिज्यूमे होगी, वो एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए। अक्सर लोगों की अपने कीवर्ड्स ही नहीं डालते उसमें, कोई अपने बस कोई
4-5 साल पुरानी उठाते हैं और ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से भी इजी अप्लाई वर्क नहीं करता। व्हाट इज़ द बेस्ट वे यू कैन डू कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जो पोस्टिंग हुई हुई है उधर जाके अप्लाई करो। अगर इजी अप्लाई में उन्होंने लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक में अप्लाई करो। मैं तो कहती हूँ इजी अप्लाई में अप्लाई करने के बाद ये सारे स्टेप करो। ठीक है, आंसर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो इट्स ओके। अब थर्ड ये करना है कि जैसे ये एक भाई हैं जो जिन्होंने ये पोस्ट की हुई है और जो ये कर रहे हैं, इनको मैसेज कर दो, इनकी प्रोफाइल में जाओ। और ये क्या जॉब इन्होंने किया, जूनियर पार्टनरशिप डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, उनको कहो कि आई हैव अप्लाइड टू दिस पोजीशन, मतलब इसमें मैसेज का कस्टमाइज करना है, एआई से लिखवा लो लेकिन उसको सेट करके, एंड आई हैव दिस 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 एक्सपर्टीज, प्लीज रिव्यू माई रिज्यूमे। ठीक है, और रिज्यूमे यहाँ पे भी भेज दो। तो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि इतना बड़ा मैसेज कर देते होते हैं कि मैंने ये किया एंड ऑल दैट। छोटा मैसेज करना है, बिकॉज इनको बहुत से और मैसेजेस आ रहे होंगे। तो इजी अप्लाई नॉट ऑलवेज वर्क, तो इसका यही तरीका है। और दूसरा तरीका है कि अपने रिज्यूमे जो आप डाल रहे हो, अब वो ही गलत डालोगे तो फिर भी ये वर्क नहीं करेगी। तो आपने ये करना है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाओ, देखो कि उन्हें ये वाला बंदा चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो अपने रिज्यूमे में जाके ये सारी इंप्रूवमेंट्स करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो स्किल्स उनको चाहिए वो अपने रिज्यूमे में ऐड करो। लेट्स से कि उन्हें चाहिए से डेवलपमेंट इन सेल्स एंड ऑल दैट, क्लाउड सर्विस के बारे में आपके रिज्यूमे में कहीं ना कहीं कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, कस्टमाइज, ये भी एक चीज़ है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज लिंक्डइन, बट नॉट बस आपको अगर लगता है कि आप इजी अप्लाई पे एक रिज्यूमे रख लोगे और फेंकते रहोगे हर जगह, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। और सेकंड आपका क्वेश्चन था कि चैट जीपीटी के थ्रू रैंकिंग वर्ड्स, देखें चैट जीपीटी आपको रैंकिंग वर्ड्स देता है, चैट जीपीटी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देखता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉम्प्टिंग पे। सेकंड चीज़ है कि आप गूगल पे जाके सर्च करो कि कौन से ट्रेंडिंग वर्ड्स जा रहे हैं, तो जो ट्रेंडिंग पे होगा वो टॉप पे आएगा गूगल की एसईओ में। और ये नहीं है कि जो चैट जीपीटी आपको दे आप उसको यूज़ करो। आपके पास Grok है, आपके पास परप्लेक्सिटी है, उधर भी जाके वर्ड्स ढूंढो और सबको मतलब उनमें से टॉप 5 उठाओ और वो यूज़ करो। और उसको कस्टमाइज करो, उसको बार बार प्रॉम्प्ट दो कि ऐड शेयर दिस विद मी इन सिंपल इंग्लिश, इन इजी इंग्लिश, इन प्रोफेशनल इंग्लिश। ये सारे ना प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग भी एक कोर्स है, आप यूट्यूब पे कर लो, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा, कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स अच्छे आंसर चैट जीपीटी से किस तरह ले सकते हो। और ये नहीं कि जो चैट जीपीटी उठा के डाल दो, चूज करो उसमें से कि क्या रेलिवेंट है। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस मैम, थैंक यू सो मच। No worries at all. I think that's all. Thank you everyone for joining. I hope मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया इससे आप लोगों की हेल्प हुई होगी। और थैंक यू अली, मानूर एंड एवरीवन फॉर हैविंग मी। और बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि आप लोगों के वहाँ पे ITS अफ्तार का टाइम होने वाला होगा, या आप लोग अपनी अफ्तारी वगैरह बनाए। आई विश यू अ वंडरफुल रमज़ान और लैलतुल कदर की रातें, any night can be that, so please remember me in your prayers and have a very good day. Can I Thank you. ask you a simple question? जी 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 अब्दुल्ला। जी, मेरा एक ये छोटा सा क्वेश्चन है कि अब हमें अपनी पोस्ट वगैरह पे जो ये कमेंट्स और लोग इस चीज़ को करते हैं कि मतलब पोस्ट ज़्यादा रीच में जाए, इसको किस तरह एंगेजमेंट ला सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। ओके, हाउ कैन आई एनकरेज मोर एंगेजमेंट एंड कमेंट्स ऑन माय लिंक्डइन पोस्ट, ये सब कुछ इस हम्म। तरीके से। अच्छा ये, अच्छा अब इसमें ये ना कि आप पहले तो डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कंटेंट कैसा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ विच इज़ लाइक मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट थी। मैंने एक पोस्ट की कुछ दिनों पहले, ये वो पोस्ट है। ठीक है, अब लिंक्डइन है जहाँ पे लोग जॉब ढूंढने आते हैं, हम बहुत इररेलेवेंट स्टफ देते हैं कि जिससे लोगों को फायदा नहीं। मैंने ये एक पोस्ट की और इसमें मुझे 1.5 मिलियन इंप्रेशंस आए। वाई? और मुझे कभी इतने इंप्रेशंस नहीं आए, बिकॉज ये एक रेलेवेंट पोस्ट है लोगों के साथ एंड पीपल रिलेटेड टू दैट। और सेकेंडली, आई पोस्ट 3 or 4 times a week, और कभी कभार 1 time a week, बट आई ट्राई टू पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो आप जितना पोस्ट करोगे, इतना लोग और रिलेटेबल पोस्ट करोगे, लेट्स से कि आपको पता होगा आपकी ऑडियंस कैसी है और उसके बारे में आप कुछ एक्सपर्ट एक्सपीरियंस या कुछ मोटिवेशनल इस तरह करोगे, तो लोग आपकी पोस्ट में इंटरेक्ट करेंगे। देखिए इस पोस्ट में इंटरेक्ट किया लोगों ने, मेरी और पोस्ट है, किसी ने 2 कमेंट्स किए, किसी ने बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं किया। तो वो बिल्कुल डिपेंड करता है टाइप ऑफ द पोस्ट पे
और आप लोगों को किस तरह देखें, आप जब लोगों की पोस्ट पे इंटरेक्ट करोगे, लेट्स से कि आप, आई डोंट नो आप किस फील्ड से, अगर आप मशीन लर्निंग से हो या आप पर्सनल डेवलपमेंट से हो, तो आप पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड लोगों से इंटरेक्ट करोगे जाके, उनकी पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह, यस आई रिलेट टू दिस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो लोग भी आपकी पोस्ट में आके आपके साथ रिलेट करेंगे। बट हाँ, अक्सर मैं जैसे अक्सर लोगों की पोस्ट पे कमेंट नहीं करती, लेकिन लोग मेरी पोस्ट पे कमेंट करते हैं, बिकॉज आई ट्राई टू एड अ रेलेवेंट कंटेंट। जितना कंटेंट रेलेवेंट होगा उतने आपको आंसर आने के चांसेस हैं। I think I सही, थैंक answered यू your सो question. मच, थैंक यू No सो मच। worries. I think that's all. We should conclude now. Thank you everyone for joining. Inshallah, I hope to see your profiles developed. Inshallah, ma'am. Okay, I Thank you think so it's time to wrap it up now. That was such a practical session. A huge thank you to Alicia Naqvi for sharing her expertise with us today. And of course, a big thank you to all of you for joining us today as well. We hope you learned a lot about personal branding and networking through this session. Stay connected with Confinity QAU for more exciting sessions like this. And don't forget to start applying these very, very useful tips on your own LinkedIn profiles. Allah Hafiz. Thank you, Alicia. Thank you. Allah Hafiz, guys. Take care.